good afternoon. It is a great privilege for us today to welcome Mr. Ritesh Andre, the spokesperson for the Nutan Mumbai Tiffin Box Suppliers Charity Trust, commonly known as Mumbai Dabbawalas. Mr. Andre's association with this renowned organization traces back to his great-grandfather, who founded the service that has become a global icon of the efficient supply chain management. Mr. Ritesh Andre completed his MBA in Finance from Sri Shankar Narayan Education Trust, Rohidas Patil Institute of Management Studies of Thane District. Since joining the Mumbai Dabbawalas in 2017, he has been instrumental in modernizing their operations through innovative solutions, including the launch of a dedicated website that connects the Dabbawalas with people not just in India but around the world. This digital initiative has broadened their reach and allowed them to share their unique model of precision and efficiency in the logistics space. Today, Mr. Ritesh Andre represents the Mumbai Dabbawalas at various events, sharing insights on the remarkable supply chain system. His work has made a sought-after speaker with the engagement at TEDx event as a guest speaker at international and national business schools. His ability to communicate the intricacies of the Dabbawala system and its impact on the global supply chain is unmatched. Students, please join me in welcoming Mr. Andre at our event. We are eager to hear from him about the Dabbawala journey and the lessons they offer to the worldwide. Please give him a huge round of applause. Now I would like to request Ms. Hetal Jethani to facilitate Mr. Andre with a bouquet of flowers. Hello everyone. Very special good afternoon to all of you. आपकी आवाज नहीं आ रही है. First of all, thank you so much for inviting me as a guest speaker over here. Thank you, Tanmay sir, and thank you, team. Before starting this session, I just wanted to ask one question to all of you. Can I ask to you? Yeah, how many of you know about the Mumbai Dabbawalas? Please raise your hand. Oh my God, almost 90%. But can anyone explain what exactly we are doing in Mumbai? What we are doing exactly? Dabbawalas क्या करती है? Yes? Right. See, what exactly we are doing? We are just collecting the lunch boxes from your home and we deliver your lunch box at your office before lunch time. So collection and distribution of lunch boxes, this is our work. But my friend, most of the time, some people they think Dabbawala is a catering service. It means we are cooking our own food and we are selling it to our customer. हम खुद का खाना कभी नहीं बनाते. We are just providing logistic service, delivery services to our customer. So collection and distribution of lunch boxes, this is our definition. But our trustees, our Dabbawala said, this is not our definition. So they said, our definition is collection and distribution of lunch boxes with the care of customer. Yes, customer care is very, very, very important here. So that's a perfect definition for us. You can see here, where's the presentation? Please play the PPT on the phone. You can see here, Mumbai Dabbawala. There are basically three words. You know why we are using Mumbai word here? Because we provide this service only in Mumbai, not in other cities as well as not in other countries. So that's why we are using Mumbai here. Dabba and Wala, basically there are two words. Dabba means a lunch box and Wala means a person who carry this lunch box, right? So it's come together, we can say it's a Mumbai Dabbawala. But Mumbai Dabbawala, there are some words in Hindi language. Pani Puri Wala, Bhel Puri Wala, right? Lokhand Wala is selling Lokhand, Pani Puri Wala is selling Pani Puri. But with Dabbawalas, we are not selling any type of dabbas. We are just providing delivery services. You know how the system was started? Mr. Mahadevji Bachcha, he is my great grandfather. He was started this business in 1890.
क्या हम सोच सकते हैं 1890 में सिस्टम स्टार्ट हुई, बिफोर 130 years back. You know how? Our founder, Mr. Mahadev Bachche, he was working with the Parsi people. You know about the Parsi people, right? He is a community of India. So one time what happened? One Parsi banker said to our founder, "Sir, can you please deliver my lunchbox from my home to my office? Because I'm getting late. Still lunch is not ready." Because वो time lunch बनाने में ज़्यादा time लग जाता था. So our founder said, "Sir, why not? I can do it because I am going to killing the hunger of someone. It's a God-gifted work. किसी की भूख मिटाना, it's a God-gifted work. I can do it." And he start with the one customer, one dabba wala, one dabba we can say. So today we have more than 5,000 employees in our service, and we daily deliver 200,000 lunch boxes. So there is one dialogue in Hindi movie. हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, बट हमारे डब्बा वाला कहते हैं हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर तो नहीं, बट डब्बे वाले ज़रूर हैं, बिकॉज वो टाइम हमने अंग्रेजों को भी डब्बा डिलीवर करने का काम किया था. This is the little bit information about our service. We have started it in 1890, and we registered this service under Bombay Public Trust Act. See, डब्बा वाला is not a business. डब्बा वाला किसी भी कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर नहीं है. We are registered under the Charitable Trust Act after 1956. Sorry, after independence of India in 1956. Total we have 5,000 employees, and we daily deliver 200,000 lunch boxes. 2 lakh डब्बा daily deliver किए जाते हैं. So that means we are doing 100,000 transactions every day. You know how? From your home to the office, that's the first transactions. After over lunch, we again picked your empty lunch box from your office and we deliver back to your home. So for one customer, we are doing 2 transactions. So 2 lakh customers, we are doing 400,000 transactions every day. For first is 2 lakh transactions, we are taking minimum 2 hours and maximum 4 hours. Can you imagine? There are various companies in Mumbai. बहुत सारे courier companies हैं, food deliveries company हैं. Courier companies, if you want to send your parcel from Borivali to the church gate, it's around 27 kilometer. अगर आपको कोई भी एक parcel भेजना है, normally piece of paper, so they will charge more than 300 rupees from you because you want to send it immediately within 2 to 4 hours. They will charge more than 300 rupees from you. Still same delivery concept is not started. Same day delivery concept अभी तक start नहीं हो चुका है. If they are providing it, then they are charging very, very high price from you. See, for Borivali to Churchgate, they are charging more than 300 rupees. They are using high technology, high educated people, even paper, plastic, their own vehicles, each and everything they are using. But still, same day delivery concept आज तक start नहीं हो चुका है. अगर आप कोई भी parcel भेजोगे तो वो next day ही deliver किया जाएगा in मुंबई में. But in Dabbawalas, we are covering almost 70 kilometer diameter, but just within 2 hours, minimum 2 hours, maximum 4 hours, we are delivering your lunch box accurately on time, without paper, without plastic, without any private vehicle, without any infrastructure, without any technology, no mobile phone, no emails, no any tracking system, even no educated people. Can you imagine how is it possible? No paper transaction means no written information. No mobile phone, that means no connectivity by over the call. No emails, no any details about the lunchbox. But how is it possible? These 5,000 people, they are delivering 200,000 lunch boxes without using anything. ये कैसे हो जाता है exactly? So this is a mystery. So everyone they wanted to know कि ये डब्बा वालाज 2 लाख डब्बास 5,000 डब्बा वालाज कैसे डिलीवर करते हैं without using anything. आज इतनी सारी कंपनीज हैं सेम डे डिलीवरी कंसेप्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, बट ये डब्बा वाला सेम डे डिलीवरी सेम डे में 2 बार डिलीवरीज देते हैं विदाउट यूजिंग एनीथिंग. सो ये डेडिकेशन लेवल डब्बा वालाज में आया कहाँ से? उनकी सप्लाई चेन कैसे काम करती है, उनकी ट्रैकिंग सिस्टम कैसे काम करती है. सो ये जो टोटल सिस्टम है ना, इट्स वर्किंग ऑन ट्रस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज विदाउट ट्रस्ट इज नॉट पॉसिबल. विदाउट ट्रस्ट ये पॉसिबल नहीं है. अगर कस्टमर ही इज सेंडिंग द लंच बॉक्स टू हिज हस्बैंड और हिज ब्रदर, अगर वो किसी को अपना लंच बॉक्स भेज रहे अपने घरों से डब्बा वालास के थ्रू, सो दे हैव ट्रस्ट ऑन डब्बा वालास. उनका डब्बा वालास के ऊपर ट्रस्ट है कि दे विल डिलीवर माई लंच बॉक्स. सो यही ट्रस्ट फैक्टर आज डब्बा वालास को उनके कस्टमर के साथ कनेक्ट रहने में हेल्प कर देता है. You know why we are working only in Mumbai? Because Mumbai is very unique city. Mumbai is a vertical city, you know. We have 3 residential parts and 1 corporate parts in a downtown. So all these 3 residential parts are connected to the downtown through the local trains.
See, first is a Virar to Churchgate, it's around 75 kilometer. Then Kalyan Dombivli to CST, and finally from New Bombay to CST. So all three residential parts are connected to the downtown. So होता है क्या exactly? जितने भी लोग हैं मुंबई में जो कॉर्पोरेट्स में वर्क करते हैं, they are staying in the residential areas, and at the in the morning peak hours सब लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं डाउनटाउन में, राइट? सो विद इन 1 hours वी कैन कनेक्ट एवरीवेयर इन मुंबई. 70 किलोमीटर के डिस्टेंस में हम कहीं पर भी कनेक्ट हो पाते हैं. सो दैट्स वाई वी आर वर्किंग ओनली इन मुंबई, बिकॉज ये कनेक्टिविटी अदर सिटीज़ में नहीं है. एंड सेकेंड थिंग, वी आर द ट्रस्ट, वी आर नॉट अ कंपनी. सो यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव किसी का भी नहीं है. सो प्रॉफिट अगर कमाना है तो दे आर थिंकिंग अबाउट द एक्सपांशन एंड सर्विस को बढ़ाने के लिए. बट ऑलरेडी वी हैव अ ट्रस्टीज. सो ट्रस्टीज दे हैव लिमिटेड टाइम, लाइक 5 years वो प्रेसिडेंट या फिर ट्रेजरर के पोस्ट पर रहते हैं. सो उनका कहना है कि हम 5 साल के लिए काम करेंगे. तो हमारे लिए एक्सपांशन से ज़रूरी है कि हमारी जो सिस्टम है उसे बरकरार रखना. सो यहाँ पर हमारी लिमिटेशंस है. बिकॉज ऑफ दैट वी आर वर्किंग ओनली इन मुंबई. एंड यू नो, in the morning, we all Dabbawalas, we use bicycles to collect the lunch boxes from the households. And finally, for the long distance journey, we are using local train. And for the last mile delivery, we are using hand car. हाथ गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है फाइनल डिलीवरीज के लिए. You can see here, train is also running on electricity. It's not running on fuel, right? So no fuel consumption vehicle here. No paper, no plastic. That means no pollution, right? No mobile phone, no tracking system. No any connectivity through the wire, through the internet. That means no radiation. So no radiation, no pollution. Our total business is eco-friendly. Now again, there is a one question in your mind. So why people they are using Dabbawalas, right? Because we can carry our lunchbox with us. But why? ये मुंबई के लोग Dabbawalas के ही through डब्बा क्यों भेजते हैं? What's the big reason behind that? You can see here how we are traveling exactly. See, thousands of people they are waiting on platform to board the train. अगर नेक्स्ट ट्रेन आ जाती है तो वो ट्रेन में आपको चढ़ना होता है विद इन 5 seconds, बिकॉज ट्रेन स्टॉप्स ऑन द प्लेटफॉर्म ओनली फॉर 10 seconds. आपको 5 सेकेंड के भीतर उतरना होता है और 5 सेकेंड के भीतर लोग वहाँ से ट्रेन पर चढ़ते भी हैं. सो मोर देन एट द टाइम 6,000 पीपल दे बोर्ड द ट्रेन विद इन 3 to 4 seconds. कैन इमेजिन इन दिस क्राउडेड लोकल ट्रेन हाउ वी कैन कैरी आवर ओन लंच बॉक्स विद अस. अगर आपको ट्रेन में चढ़ना भी है, जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोर, people will push out you into the train. अगर आपको कहीं स्टेशन पे उतरना नहीं होता तभी भी लोग आपको धक्का मार के निकाल देंगे बाहर, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द डोर. ये मुंबई की लाइफ है एग्जैक्टली. इस क्राउडेड लोकल ट्रेन में हम खुद का लंच बॉक्स कैरी नहीं कर पाते. सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर यूजिंग Dabbawala सर्विस. एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट वी आर इंडियन, सो वी लाइक होम कुक मील, राइट? घर का खाना ही हमें सबसे अच्छा लगता है. बट घर का खाना खाना है पर तो ट्रैवल तो नहीं कर पाएंगे, राइट? ओनली मदर और योर वाइफ दे कैन मेक हेल्थी फूड फॉर यू. सो घर का खाना खाना है तो Dabbawalas के सिवाय ऑप्शन नहीं है. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस पीपल यूजिंग अ Dabbawala सर्विस. व्हेन द सिस्टम वाज स्टार्टेड ऑन दैट टाइम द रीजन वाज डिफरेंट. जब सिस्टम स्टार्ट हुई थी तो Dabbawalas का शुरू करने का रीज़न था बिकॉज वो टाइम इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी कि खाना जल्दी से बन पाए. तो पारसी लोग ऑफिस में निकल जाते थे और फिर बाद में Dabbawalas अपना डब्बा लेके उनको डब्बा डिलीवर करते थे. बट आज के रीजंस कुछ अलग है. सो दिस इज आवर बैकग्राउंड. वी ऑल 5,000 Dabbawalas, यू नो वाई वी आर टुगेदर. हमारी जो बॉन्डिंग है बिकॉज ऑफ आवर बैकग्राउंड. वी ऑल 5,000 Dabbawalas, वी बिलोंग्स फ्रॉम वन बैकग्राउंड. वी आर फ्रॉम वारकरी सेक्ट फ्रॉम मराठा कम्युनिटी. सो यू ऑल यू हर्ड अबाउट द मराठा कम्युनिटी, राइट? छत्रपति शिवाजी महाराज, ही इज आवर ग्रेट लीडर. सो इन मराठा कम्युनिटीज जो लोग भगवान को ज़्यादा मानते हैं, जो लोग भगवान को ज़्यादा फॉलोज करते हैं, उसको हम वारकरी कहते हैं. एंड वी ऑल आर 5,000 Dabbawalas आर फ्रॉम वारकरी सेक्ट. मीन्स हमारे जितने भी Dabbawalas है 5,000, सो दे थिंक गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ऑन द टॉप. गॉड ने जो भी कुछ कहा है जस्ट फॉलो दिस थिंग्स. सो गॉड ने एक चीज़ एक अच्छी तरह से कही है, सर्विंग पीपल इज टू सर्विंग गॉड. जन सेवा यही सच्ची ईश्वर सेवा, राइट? सो सर्विंग पीपल मीन्स हु एग्जैक्टली? So serving people means our customer, right? So we are delivering lunch boxes not to the customer. We are delivering lunch boxes directly to the God. Means हम जो काम कर रहे हैं ये भगवान के लिए कर रहे हैं. अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो दिल जान से करो, डेडिकेटली काम करो, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट विल कम. So because of this background,
और एरर रेट इज, एक डब्बा गलती से भी भूल जाता है 60 लाख ट्रांजैक्शन होने के बाद, 1 एरर आफ्टर 6 मिलियन ट्रांजैक्शंस। कैन इमेजिन, 60 लाख डब्बा डिलीवर होने के बाद गलती से एक गलती डब्बा वालास में होती है, ये माना जाता है एज पर द फोर्ब्स। उन्होंने एक डब्बा वालास के ऊपर केस स्टडी की थी। दिस इज आवर स्ट्रक्चर। बेसिकली if you are running a business, then we know we want a manager structure to manage the business, right? Managers, chairmen, there are multiple posts. But in our system, we don't have any marketing department, no finance department, no any operation department. Only we have two structure here. First one, that is our charitable organization, Nutan Mumbai Tiffin Box Supply Charity Trust, and second one, that is Mumbai Tiffin Box Supplier Association. You know why we have two organizations here? Because we all know there are two parts in business, internal and external, right? So internally, our association is helping us to take the decisions, and trust is working for external decisions. External decisions regarding marketing, expansion, charitable activities, and advertisements. And internal decisions regarding customer satisfaction, new employment, new customer joining, internal conflicts management, जो भी कुछ internally finance management होता है, वो सारी चीज़ें हमारी association करती है। बट यहाँ पर एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, यू कैन सी हियर, अ ट्रस्ट इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर एंड एसोसिएशन इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। ये वर्टिकल स्ट्रक्चर और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन वर्टिकल स्ट्रक्चर अ सिंगल पर्सन दे कैनॉट फाइनलाइज द डिसीजंस। अगर आपको डिसीजन फाइनल करना है तो एटलीस्ट मेजोरिटी आनी चाहिए आपकी। इफ देर आर 10 पीपल तो एटलीस्ट 6 पीपल गिव अ पॉजिटिव आंसर टू यू। अगर 6 लोगों की सहानुभूति आपके पास हो तो ऑटोमेटिकली यू कैन टेक अ डिसीजंस। बट इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स एवरीवन हैज सेम राइट्स, सबको सेम राइट्स होते हैं। दे कैन टेक देयर डिसीजंस एनीवेयर एनी टाइम इफ दे वांट। यू कैन सी हियर आर ऑल 5000 डब्बावालास, दे आर वर्क्स अंडर द हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स। दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी बॉस। हमारे यहाँ पर कोई बॉस डायरेक्टर कोई भी नहीं है जो डब्बावालास को डायरेक्शन दे और उन्हीं के डायरेक्शन के बेस्ट डब्बावालास काम करे। सो डब्बावालास दे आर सेटिंग देयर ओन टारगेट्स, दे आर सेटिंग देयर ओन गोल्स, जैसे काम करना है कैसे करना है, बट टारगेट सबके लिए एक ही है, दैट्स डिलीवर लंच बॉक्सेस ऑन टाइम बिफोर 1 o'clock। सो 1 बजे के पहले सारे डब्बास डिलीवर होने ही चाहिए, ये बेसिकली टारगेट होता है। चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करो, बट ये आपको फॉलो करना है। सो उसके लिए डब्बावालास खुद अपने डिसीजंस ले लेते हैं। सो वी हैव 5000 डब्बावालास हियर। सो हमने क्या किया है कि हर एक डब्बावालास को ग्रुप में डिवाइड किया गया है। टोटल 10 पीपल दे आर वर्किंग इन वन ग्रुप। So almost we have 500 groups in Mumbai. So as per the residential areas, we have divided the groups. So Boroli is a big residential area, so there are more than 10 groups are working. At the Ville Parle station, there are less residentials, so only 4 groups are working there. Means 40 dabbawalas basically. So 500 mukadams. In every group, we have a supervisor. So in Marathi, we called it mukadam, but in English, it's a supervisor. So mukadam means supervisors. In every group, 9 will be the dabbawalas and 1 will be the supervisors. And we have 5 directors here, president, vice presidents and 3 members. So ये जो लोग हैं, ये डब्बावालास को only suggestions दे सकते हैं, not a directions. As a trustees, if you are a president, doesn't matter. Presidents, vice president, treasurer and secretary, ये जो positions हमारे डब्बावालास में कोई काम के नहीं हैं। Means ये positions को values सभी डब्बावालास का अगर कोई प्रॉब्लम होता है या फिर कोई भी डब्बावालास का कोई क्वेश्चन राइज करना है या फिर गवर्नमेंट को डिमांड करनी है कुछ, तो ये ट्रस्टीज का रोल काम में आ जाता है। बट इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ट्रस्टीज का रोल 0 है। ट्रस्टीज दे कैन गिव सजेशंस ओनली, दे कांट गिव अ डायरेक्शंस। सो डायरेक्शन देने का जो राइट्स है ये हमारे सुपरवाइजर्स को है। सो सुपरवाइजर्स हैव राइट्स टू गिव अ डायरेक्शन टू डब्बावालास, और ये भी डब्बावालास के ऊपर डिपेंड है उनके डायरेक्शंस को फॉलो करना है या नहीं। अगर कोई भी डब्बावालास कोई भी प्रॉब्लम सिस्टम में खड़े कर देते हैं तो उनको जॉब से निकालने का राइट्स हमारे ट्रस्टीज को है, बट ट्रस्टीज को इलेक्ट करने का काम हमारे डब्बावालास का है। सो यहाँ पर किसी को भी एक बंदे को कोई भी टाइप के राइट्स नहीं है ताकि कोई भी सिस्टम हमारी कोलैप्स हो पाए। यहाँ पर सोल राइट्स किसी को नहीं है। इस टोटली डिपेंड्स ऑन अ ट्रस्ट बेस। सो आफ्टर every 5 years we hold the election in the system. So if you want to be a president for a dabbawalas, so first you should serve as a dabbawalas for 3 to 4 years. After that 2 years for as a mukadam, as a supervisors. एक बार 5 साल आपके कंप्लीट हो गए तो आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जा सकते हो।
यहाँ पर सारे डब्बावालाज आपको वोट करेंगे और उसके बाद ही आपको एज अ प्रेसिडेंट या फिर कौन से पोजीशंस पे देखना है ये डब्बावालाज तय करेंगे। सो यहाँ पर सिस्टम को आप एनालाइज करोगे तो आपको एक बात पता चली जाएगी, इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स डायरेक्टर्स मैनेजर्स ये प्रमोशन देते हैं किसी एक एम्प्लॉयज को, राइट। यहाँ पर मोस्ट केस में क्या होता है कि जो कैपेबल होता है उसे प्रमोशन नहीं दिया जाता और दूसरे बंदे को ही प्रमोशन दिया जाता है। तो यहाँ पर इंटरनल प्रॉब्लम्स ऐसी खड़ी हो जाती है कि जितने भी लोग उसके साथ काम थे, मतलब उसके जो कलीग्स हैं, सो दे विल थिंक कि लाइक अरे ये तो बंदा ये कैपेबल था, इसे कैसे प्रमोशन मिला, कुछ इंटरनल सेटिंग्स है क्या, कुछ इतना मतलब क्या हो गया कि ऐसे कि इनका प्रमोशन इनको दे दिया। तो उसमें होता क्या है कि ये जो गैप हो जाता है ना, जो उनके कलीग्स, क्योंकि उनका जो बंदा, उनका जो फ्रेंड था वो तो बॉस बन गया और ये बॉस और जो एम्प्लॉयज़ है उनके बीच का जो कनेक्शंस है ना ये लूज हो जाता है और उसी की वजह से कंपनीज के परफॉर्मेंस के ऊपर प्रॉब्लम्स हो जाती है। बट सेम चीज़ अगर डब्बावालाज में देखोगे तो डब्बावालाज खुद उसके बॉस को सिलेक्ट करते हैं और ऊपर उनको इलेक्ट करके भेजते हैं। सो ये डब्बावालाज में चेंज है, अगर हमने उनको भेजा तो हमें उनको फॉलो करना ही है। दैट्स द थिंग्स वी आर फॉलोइंग। So here is a one case study. See, exemplary performance is possible when and only when external excellence programs such as the Six Sigma go hand in hand with high level of internal excellence. Guys, how many of you know about the internal excellence? Internal excellence nothing but like your satisfaction level, your dedication level. So can we calculate our satisfaction level and dedication level in numbers? हम इसे numbers में calculate कर पाते हैं क्या? Like today I'm 75% satisfied, so I can give 25% for my family and 50% for my company. ऐसे हम calculate नहीं कर पाते, right? So one time what happened, Mr. Pradeep Deshpande, he's from US, he's a friend of Mr. Michael Harry, and Michael Harry is a co-creator of Six Sigma. Six Sigma you all know, right? Six Sigma is a quality control. मीन्स कोई भी कंपनी अगर कोई किसी भी टाइप के ट्रांजैक्शंस करती है या फिर प्रोडक्शंस करती है तो उनके 10 लाख ट्रांजैक्शन या फिर प्रोडक्शन होता है तो उसमें से डिफेक्ट्स लेवल कितने आ जाते हैं, उसमें से डिफेक्टेड पीस कितने होते हैं। लाइक 10 लाख में से अगर आपके 10 या 12 डिफेक्ट पीस निकल गए तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सिक्स सिग्मा। अगर आपकी गलती 10 लाख में अगर एक या दो ही प्रोडक्ट आपके मतलब डिफेक्टिव होते जाते हैं तो उससे कहते हैं सिक्स सिग्मा। मीन्स 1 to 3 डिफेक्ट दैट्स अ सिक्स सिग्मा, 3 to 5 डिफेक्ट दैट्स अ 5 सिग्मा। ऐसी एक लेवल्स है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। मोटोरोल कंपनीज में से फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। एंड मिस्टर प्रदीप देशपांडे इज अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर माइकल हैरी। ही सेड कि आई नो डबल हैज अ गुड सप्लाई चेन, गुड कोडिंग सिस्टम, बेस्ड ऑन दैट दे आर डिलीवरिंग देयर लंच बॉक्सेस ऑन टाइम बिफोर टाइम, बट व्हाट अबाउट देयर इंटरनल फैक्टर्स, राइट? इफ अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑटोमेटिकली डेडिकेशन विल नॉट कम। इफ देर इज नो डेडिकेशन देन ऑटोमेटिकली देयर परफॉर्मेंस लेवल विल गो डाउन, राइट? ये परफॉर्मेंस उनकी डाउन हो सकती है। सो दैट मीन्स ये सप्लाई चेन और कोडिंग सिस्टम ये तो टोटली एक्सटर्नल पार्ट है। वॉट एवर वी आर यूजिंग दिस इज अ टोटली निर्जीव पार्ट, वी कैन से इट्स अ डेड पार्ट। ये सिर्फ सिस्टम में यूज किया जा सकता है, इसे ये ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगा जब तक कोई डब्बा वाला उसे स्टार्ट नहीं करेगा। सो ये डेडिकेशन फैक्टर को इन्होंने कैलकुलेट किया थ्रू द मशीन। सो ही जस्ट केम डाउन इन मुंबई, उन्होंने एक मशीन डेवलप किया। थ्रू दिस मशीन ही जस्ट कैलकुलेट द फोटोनिक एनर्जी फ्रॉम 10 फिंगर्स। और ये कैलकुलेशन करने के बाद उनको एक रिजल्ट आ गया। यू कैन सी द रिजल्ट। सी एवरीवन वी हैव 6 एनर्जी सोर्स इन आवर बॉडी। सो ये 6 एनर्जी सोर्स को कैलकुलेट करके उन्होंने एक नंबर्स फाइंड आउट किए। दैट्स अ डेडिकेशन लेवल। यू कैन सी हियर इट्स 93, 96, 92, 95, 96। ये है डेडिकेशन लेवल ऑफ डूम बाय डब्बावालाज। आई सेड व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस इन दैट? सो ही सेड व्हेन आई डिड द सेम केस स्टडी इन द कॉर्पोरेट, तो उन्होंने कहा जब ये केस स्टडी हमने कॉर्पोरेट्स में की थी तो देयर डेडिकेशन लेवल वाज बिलो 80%। बिलो 80% उनका रिजल्ट आ चुका था। और यही सेम केस स्टडी जब किसी हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ की जाती है तो देयर डेडिकेशंस उनका जो रिजल्ट है वो 70% से कम आ जाता है। सो उनका कहना यही है कि ये नंबर्स सिर्फ आपको शो करते हैं कि एग्जैक्टली डब्बावालाज का माइंडसेट किस तरह से काम करता है। See, Dabbawalas, they are giving 100% dedication, means more than 90% dedication for their job. You know why? Because they think about God. Like God को सर्व करना है. That means अगर God को टाइम पर सर्व नहीं किया तो God will get angry on me. अगर भगवान मेरे पे नाराज हो जाते हैं तो ये मेरे से बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो ये जो माइंडसेट वी हैव ना, because of that they have a good dedication power.
और सेटिस्फैक्शन, सी विदाउट सेटिस्फैक्शन डेडिकेशन नहीं आता. 100% सेटिस्फैक्शन तो 100% डेडिकेशन, 10% सेटिस्फैक्शन तो ओनली 5% डेडिकेशन है. सो डेडिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन लेवल ये डब्बावालास की मोर देन 90% है, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द गॉड थिंग्स. सो ही सेड, he gives one mantra to the corporates: high internal excellence plus high external excellence is equal to high performance. See, high internal excellence means आपका जो dedication level है, it should be more than 90%. Plus high external excellence means whatever we are using in our business, infrastructure, technology, supply chains, जो भी totally dead part, mobile phones या फिर paper, plastic, laptop, ये सारा external things है, right? ये भी उसकी जो क्वालिटी है इट्स मोर देन 90% होनी चाहिए. इफ आई एम स्टैंडिंग विद 100% डेडिकेशन एंड इफ आई एम यूजिंग द 90s टेक्नोलॉजी, देन ऑटोमेटिकली माई कॉन्फिडेंस लेवल विल गो डाउन, मेरा परफॉर्मेंस पे असर नहीं होगा, राइट? सो हाई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लस हाई डेडिकेशन, तभी हम हमारे परफॉर्मेंस को बीट कर पाएंगे. सो डब्बावालास के केस में हमारी इंटरनल एक्सेलेंस लेवल इट्स मोर देन 90%. एंड व्हाट अबाउट आवर एक्सटर्नल लेवल? यू नो, हमारी जो एक्सटर्नल एक्सेलेंस रिपोर्ट है, that's a 99.99997% as per the Six Sigma. So both the things are more than 90%. So because of that, Dabbawala's are famous in all over the world. Because वो 130 years से high performance देते आ रहे हैं, because ये दो चीज़ वो अच्छे से follow कर रहे हैं. So I said to him, then Dabbawala's they have a good dedication level because of their God factor. Then like you and me, we are a rational minded people. We can give 50% for science, 50% for God. Then हम हमारा इंटरनल एक्सेलेंस लेवल कैसे बढ़ा पाएंगे? सो ही सेड देयर आर 3 पार्ट्स एक्चुअली, 3 ways: भक्ति, राज योगा एंड मेडिटेशन. सो भक्ति, देयर इज नो एनी कोर्स इन द मार्केट टू इंप्रूव योर भक्ति लेवल, राइट? इट्स कम फ्रॉम द चाइल्डहुड. सो यू एंड मी, हमारे लिए भक्ति ऑप्शन तो नहीं हो सकता, अगर है तो उसे हमें शो करना होगा. सेकेंड थिंग, योगा एंड मेडिटेशन. थ्रू द योगा एंड मेडिटेशन वी कैन कंट्रोल आवर इनर एक्सेलेंस एंड वी कैन यूज इट प्रॉपरली फॉर आवर जॉब, मीन्स फॉर आवर एक्सटर्नल यूज. मतलब योगा एंड मेडिटेशन के थ्रू भी हम हमारे खुद को कंट्रोल कर पाते हैं, ऐसा उनका कहना है. सो यू नो, आज अगर डब्बावालास का आप शेड्यूल देखोगे, सो वी स्टार्ट आवर वर्क एक्चुअल बाय 9 o'clock, बट वी स्टार्ट आवर जर्नी बाय 8:30 in the morning. So 8:30 to 9 o'clock, these 30 minutes we are giving for a dedication, for a meditation, bhakti and setting the goals. ये 30 minutes में सारे डब्बावालास योगा भी कर लेते, कभी कभी मेडिटेशंस भी करते हैं, दे आर सेटिंग देयर ओन टारगेट्स. लाइक आज मुझे 40 लंच बॉक्स के अलावा मुझे सिर्फ 30 लंच बॉक्स ही पिक करने हैं. तो किस एरिया से पिक करने हैं, कैसे पिक करने हैं, दे आर सेटिंग देयर गोल्स, टारगेट्स. मुझे ये टाइम पर यहाँ पर पहुँचना है, तो बिफोर दैट व्हेन आई शुड स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे रूट डिसाइड करना है, ये सारी चीज़ें वो 30 मिनट्स में कर लेते हैं. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर द बिलीफ्स. What exactly we are following? It's said by the God exactly. Work is a workshop means how we have to focus on our job. हमें किस तरह से हमारे काम पर फोकस करना है. Serving people is to serving God. That's a customer is the God means this is our objective. आनंद is महानंद. Satisfaction level. जो भी कुछ है उसी में satisfy होना आना चाहिए. That's said by the God. And second thing is अन्नदान is a महादान. Food donation is a big donation. See, because of this below 2 words, Dabbawala's are famous in all over the world. Time is the money and unity is a power. See, time is the money means what exactly? Dabbawala's का कहना यही है कि हम पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा हमें कभी नसीब नहीं होगा. अगर हम टाइम को ही पैसे की तरह देखेंगे, then automatically money will come. Means उनका कहना यही है कि जितना भी टाइम हम मनी अर्निंग के रिगार्डिंग सोचेंगे, क्योंकि हमारा इंटेंशन एक ही होगा, मनी अर्निंग. सो फॉर मनी अर्निंग वी कैन किल एनीवन. हम कुछ भी कर सकते हैं, हम चोरी भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारा इंटेंशन है कि मुझे पैसे कमाना है. बट हमारे केस में एग्जैक्टली होता क्या है, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम इज इंपॉर्टेंट. यू नो व्हाई टाइम इज इंपॉर्टेंट? एवरी सेकेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप जितना डेडिकेशन लेवल मनी अर्निंग के लिए दे देते हो, उतना ही डेडिकेशन लेवल टाइम यूटिलाइजेशन के लिए दे दोगे, सो ऑटोमेटिकली मनी विल कम. ये डब्बावालास का कहना है. टाइम के लिए काम करो, ऑटोमेटिकली मनी विल कम. सो दैट्स वी आर फॉलोइंग. एंड यूनिटी इज अ पावर. सो कोई भी काम विदाउट यूनिटी नहीं कर सकते. कितना भी बड़ा राजा हो या कितना भी बड़ा माइंडसेट वाला बंदा हो, लेकिन अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता. सो वर्क विद यूनिटी. विदाउट यूनिटी हम कुछ नहीं कर सकते. सो दिस वॉज टोटली द इंटरनल पार्ट. कि टोटल 5000 डब्बावालास आर इंटरनल लेवल्स.
or internal some backgrounds, but how it's possible externally? ये externally on ground level exactly होता कैसे है? How 5,000 dabbawalas they deliver 200,000 lunch boxes without using anything? See, externally we have coding system and distribution flow. Coding system is what exactly? When we order some parcels from Amazon, Amazon, Flipkart, so you will see some barcode or QR code will be there. So once we scan it by the scanner, उसी के बाद हमें पता चल जाता है exactly ये डब्बा या फिर ये पार्सल कहाँ जाके डिलीवर किया जाएगा. Same as that, our coding system is also working. Distribution flow, this is our supply chain. See, this is our coding system. So here is no coding, no barcode, no QR, right? So mostly scanned by the eyes. So when I did my case study on Dabbawala, so one time I asked one question to my Dabbawala, so how do you know about your customer? So he said, this is my QR code, my eyes is my scanner, my head is my computer, and ये जो white cap है ये मेरे computer का cover है. So this is a humor technology I am using. So that's it, he said. I said, that's okay. But how do you know about your customer? आपको कैसे पता चल जाता है कि ये lunch box ये जगह से जाएगा और ये जगह पर जाके डिलीवर किया जाएगा? So can anyone want to scan this code? QR और barcode code नहीं है. So doesn't need any scanner. Only numbers, alphabets, कुछ color combinations इस code में है. Can anyone wanted to scan it? Yes? VLP stand for Vileparle. Good answer. Okay, E stand for Vileparle East. Okay, from this row, just try to decode the Dabbawala's code system. Like something, 9 is the peak time, 12 is a drop. Just try yourself. Backbenchers? No one? See, यहाँ पर कोई स्कैनर की ज़रूरत नहीं है. Just देख के ही पता चलना चाहिए कि ये कैसे होना चाहिए. Just give your answer. Give your answer. Don't use a mobile phone because आज इंटरनेट पे सब ये अवेलेबल है. Like ग्रीन पार्ट का मतलब क्या हो सकता है? रेड पार्ट का मतलब क्या हो सकता है? ये जो 9 and 12 है, ये प्लेटफॉर्म नंबर्स है या फिर टाइमिंग्स है? ये सेंटर जो कोड है, इसका मतलब क्या हो सकता है? No one? Okay, let's see here. Let's see here, ये कोडिंग सिस्टम एग्जैक्टली काम कैसे करती है. हम सोच भी नहीं पाएंगे, इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस कोड में दी गई है. हम सोच भी नहीं पाएंगे. लेट्स सी. सी ये डब्बा मॉर्निंग में कौन सा डब्बा वाला पिक करेंगे? विच डब्बा वाला विल पिक दिस लंच बॉक्स इन द मॉर्निंग? द नेम ऑफ द डब्बा इज मेंशन इन दिस कोड. उस बंदे का नाम इस कोड में दिया गया है. ये बंदा किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, उस ग्रुप का कोड भी इसमें कोड में दिया गया है. ये डब्बा ईस्ट और वेस्ट, यू नो मुंबई इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ईस्ट और वेस्ट एरिया. सो ये डब्बा किस जोन से, मींस ईस्ट और वेस्ट से पिक किया जाएगा, दैट्स आल्सो मेंशन हो. ये डब्बा किस स्टेशन से पिक किया जाएगा, स्टेशन कोड भी होगा, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट होगा तो स्टेशन तो पता होना चाहिए. तो स्टेशन कोड इज आल्सो मेंशन हियर. बाद में ये डब्बा ट्रैवल करके डेस्टिनेशन पॉइंट पर चला जाएगा. सो व्हाट वुड बी द डेस्टिनेशन कोड? सो डेस्टिनेशन कोड भी यहाँ पर दिया गया है इस कोड में. जैसे ही आपका लंच बॉक्स डेस्टिनेशन कोड पर आ जाता है, तो ये डब्बा दूसरे डब्बा वाला के हाथ में चला जाएगा. तो वो दूसरा डब्बा वाला कौन होगा, उस बंदे का नाम भी इस कोड में ऐड किया गया है. ये डब्बा ये डेस्टिनेशन पॉइंट से पिक करेंगे और फाइनली इसे डिलीवर करने जाएंगे किसी तो बिल्डिंग में, राइट? सो बिल्डिंग का नाम भी इस कोड में दिया गया है. और जैसे ही वो बंदा बिल्डिंग के गेट के सामने आ जाएगा तो देयर आर मल्टीपल फ्लोर्स, राइट? सो एग्जैक्टली कौन से फ्लोर पर इसे डिलीवर करना है, सो फ्लोर कोड इज ऑल्सो मेंशन हियर. कैन इमेजिन इफ यू राइट दिस ऑल इंफॉर्मेशन ऑन A4 size paper, we need fully A4 size paper, but they compress it within the 4 core only. Let's see here, there are only 4 code. See, E3 VLP 9x12. So probably with the 4 code, we can't make 2 lakh codes, right? अगर हम 2 dice भी फेंक देते हैं तो 36 probabilities आती है. तो with the 4 code it's not possible. So because of that we are using color combinations, multiple languages, multiple colors, multiple codes, multiple numbers to generate the codes. ये कैसे काम करती है, you can see here. See, VLP stand for Vileparle. So ये लंच बॉक्स विलेपार्ले स्टेशन से पिक किया जाएगा. You know why? Because it's wrote on the top. Top address always be a pick point for us. जो भी कुछ टॉप पे होगा, that's a pick point. So exactly वो कौन से भी नंबर हो या फिर अल्फाबेट्स हो,
So यहाँ पर VLP लिखा है टॉप में, that means this lunch box will pick from Ville Parle station. So who will pick? Mr. E will be the डब्बा वाला कोड. Mr. E ये डब्बा वाला का नाम है, like ईश्वर. So Ishwar will pick this lunch box from Ville Parle station. So Mr. E, he is from group number 2 and this lunch box will pick from Ville Parle West. So why Ville Parle West and group number 2, I'll explain in the next slide. So यहाँ पर इतना ही ध्यान में रखो, Mr. E will pick this lunch box from Ville Parle station. So जैसे ही ये पिक करेंगे, ये Ville Parle station पर उनके segregation point पर मीट करेंगे अदर डब्बावालास के साथ. So finally ये डब्बा कहाँ पर जाके डिलीवर किया जाएगा? So you can see in the center. So center code always be a destination code for us. So 3 numbers we allotted for the Churchgate. So this lunchbox will travel from Ville Parle to Churchgate through the local train. So once the dabba reach at Churchgate station, Mr. 9 is the next dabba wala name. He will pick this lunchbox from Churchgate station and he will goes for the final delivery in EX Tower. EX is a short form of the building name. EX means Express Tower. There is one building in Churchgate, Express Tower. आपने 9/11 के हमले में ये बिल्डिंग का नाम सुना होगा. और फाइनली एक्सप्रेस टावर के 12 फ्लोर पर जाके इसे डिलीवर किया जाएगा. इट्स वेरी सिंपल, राइट गाइज? इट्स नॉट अ सिंपल. if you want to understand the whole coding system, see total we have 2 lakh different codes. This is only one. Total we have 2 lakh different codes. If you want to understand the whole coding system, it will take more than 4 months to understand the coding system. आज तक मैं डब्बावालास के साथ लास्ट 5 years से काम कर रहा हूँ, बट आज तक मैं 80% से ज़्यादा कोड समझ नहीं पा रहा हूँ. 80% कोड्स में समझ पाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं समझ पा रहा हूँ. यू कैन सी द जर्नी ऑफ द कोड्स. ये कोडिंग सिस्टम बनी कैसे? व्हेन वी आर स्टार्टेड ऑन दैट टाइम, हम सिर्फ एक कलर थ्रेड का यूज़ करते थे टू अंडरस्टैंड ओनली द डब्बास, बिकॉज ऑन दैट टाइम मुंबई वॉज डिवाइडेड इंटू द 7 आइलैंड्स. वहाँ पर 7 आइलैंड्स थे, तो हर एक आइलैंड्स को एक कलर दिया गया था, रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर. सो जो भी आइलैंड से डब्बास आते थे, वो डब्बास को अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन, सॉरी अकॉर्डिंग टू द पिक पॉइंट, उनको जस्ट थ्रेड बांध देते थे. बिकॉज वो टाइम ज़्यादा डब्बास नहीं थे, 100-200 डब्बास थे. सो ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, ईजिली वी कैन मैनेज इट. बट जैसे डब्बास के नंबर बढ़ते चले गए, तो थ्रेड की विजिबिलिटीज़ कम होती गई, क्योंकि थाउजेंड्स डब्बास, 500 डब्बास अगर एक ही जगह पर रख देंगे, तो वो थ्रेड हमें नहीं दिख पाता कि कैसे सेग्रीगेशन करेंगे. सो बिकॉज ऑफ दैट 1960 के बाद द पीस ऑफ क्लॉथ, जिसे हम हिंदी लैंग्वेज में छोटी चिंदी कहते हैं, सो ये कपड़े का टुकड़ा फाड़ के उस डब्बे को टाई किया जाता था, बिकॉज विजिबिलिटी स्ट्रांग होती चली जाए. तो जैसे ही ये नंबर्स भी बढ़ते चले गए, तो इतने सारे कपड़ा लाएंगे कहाँ से? सो ये मैनेज कैसे करेंगे? सो आइलैंड्स जो 7 आइलैंड्स थे, वो एक जैसे हो चुके थे. सो अब क्या करेंगे? तो उसी के बाद वो क्लॉथ यूज़ करने से अच्छा है ऑयल पेंट कलर्स का हम इस्तेमाल कर पाएंगे. सो जैसे ही कोई डब्बास बढ़ जाते थे, जस्ट राइट ऑयल पेंट्स उनको लगा दिया जाता था और डब्बावालास का काम हो जाता था. यू नो व्हाई दे आर यूजिंग ओनली विजिबिलिटीज? बिकॉज हमारी जो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन थी, दे आर टोटली अनएजुकेटेड. उनको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था. सो वो कुछ भी लिखेंगे तो उनको पता नहीं चलता था. सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली ऑयल पेंट कलर्स एंड ऐसे कुछ चीज़ें यूज़ करते थे. बट जैसे ही हमारी थर्ड जनरेशन सिस्टम में आती चली गई, तो उन्होंने सिस्टम को चेंज करने के लिए धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया. यू कैन सी आफ्टर 1980 तक ओनली ऑयल पेंट कलर यूज़ किए जाते थे, ओनली कलर्स का यूज़ किया जाता था, बट कोड्स नहीं थे. बट आफ्टर 1980 वी स्टार्ट यूजिंग द कलर विद द कोड्स. यू कैन सी ये ऐसे कोड्स लिखे जाते हैं जैसे VLP 9X, ये कलर्स में लिखे जाते हैं. सो मल्टीपल कलर्स विद द कोड्स, स्टिल वी आर यूजिंग दिस कोडिंग सिस्टम. बट इन फ्यूचर मे बी कलर्स विल गेट रिमूव्ड, बिकॉज कलर्स का यूज ही नहीं हो पाएगा. आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में पता चल जाएगा एग्जैक्टली वाई. सी दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ आवर कोड्स. सी इन द फर्स्ट कोड, VP also stand for Ville Parle. So VP and VLP, in the previous code VLP was there, right? So I told you this lunchbox will pick from Ville Parle West. So why West? Because VLP stand for West and VP stand for Ville Parle East. Now in this beginning of this presentation I told you in Ville Parle station there are only 4 groups are working, right? So 4 groups means 2 groups for west and 2 groups for east side. So ये ईश्वर जो बंदा था लास्ट स्लाइड में, so ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता था. You know why? Because of the colors. See yellow and red color, this is a symbol of group number 1. And जो previous स्लाइड में था वहाँ पर green and yellow color था, right? Sorry, green and red. Green and red, this is a symbol of group number 2, and yellow and red, this is a group symbol of group number 2.
सो बिकॉज ऑफ दैट आई कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड ये बंदा सेकंड ग्रुप से, ये विले पार्ले वेस्ट से बिलोंग करता है, और ये डब्बा ये ईश्वर के नाम, मतलब वो बंदा मुझे एग्जैक्टली मैं पहचान पाता हूँ कि ये बंदे ने डब्बा पिक किया होगा. सी हियर, सो दिस लंच बॉक्स विल पिक फ्रॉम विले पार्ले ईस्ट बाय मिस्टर ई. अभी उनके भी ग्रुप में किसी बंदे का नाम ई से स्टार्ट होता होगा, बट ही इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 1, राइट? So he will take this lunch box and he'll send this lunch box to the Churchgate station. Mr. 9 again will come there. He will deliver this lunch box in Air India Tower on 12th floor. So this lunch box will pick from Ghatkopar station from Mr. D, and ये डब्बा डिलीवर किया जाएगा दादर में. See 13 numbers we allotted for the दादर, and दादर में जैसे ये लंच बॉक्स आएंगे तो सेकेंड नंबर का डब्बा वाला इसे पिक करके पेनिनसुला टॉवर के 9th फ्लोर पर इसे डिलीवर कर देंगे. जैसे ये डब्बा बोरोली से पिक किया जाएगा, मुफतलाल टावर में इसे 10th फ्लोर पर डिलीवर किया जाएगा. ये डब्बा मालाड से पिक होकर जीपी टावर में ग्राउंड फ्लोर पर डिलीवर किया जाएगा. सो ये है कोडिंग सिस्टम एग्जैक्टली. बट इसे अंडरस्टैंड करने में हमें क्यों टाइम लग जाता है? यू कैन सी हियर, इफ वी आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द कोड्स, जैसे ही किसी कोड की पोजीशन चेंज की जाती है सो ऑटोमेटिकली उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है. इफ सपोज देयर आर सम स्टेशंस लाइक दादर, दहिसर, देवनार एंड डोंबिवली, ये 4 स्टेशन ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है डी से. तो ये डी हम कैसे राइट करेंगे और हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये डब्बा एग्जैक्टली किस स्टेशन से पिक किया जाएगा, राइट? सो इफ आई राइट डी ऑन द टॉप, अगर डी को मैंने टॉप में ऐड किया सो डब्बा वाला समझ जाएंगे दिस लंच बॉक्स विल पिक फ्रॉम दादर स्टेशन, सॉरी दहिसर स्टेशन. इफ आई चेंज द पोजीशन, अगर डी को मैंने टॉप में न लिखते हुए उसे डाउन में ऐड कर दिया, हमने उनकी पोजीशन चेंज कर दी, टॉप्स के लेके डायरेक्ट बॉटम में उसको ऐड कर दिया, सो दैट मीन्स दिस लंच बॉक्स विल पिक फ्रॉम दादर स्टेशन. अगर मैंने डी को टॉप में एंड बॉटम में 2 बार ऐड किया तो उसका मतलब ये होता है कि ये डब्बा पिक किया जाएगा डोंबिवली स्टेशन से. अगर मैंने डी को डाउन में एक ही बार ऐड किया बट जो पिक करने वाला बंदा है मिस्टर ई, उसको टॉप में और लेफ्ट में 2 बार ऐड किया, सो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये डब्बा देवनार स्टेशन से पिक किया जाएगा. दादर, दहिसर, डोंबिवली और देवनार, ये जो 4 स्टेशन है ना, इनका भीतर का आप डिस्टेंस देखोगे तो मोर देन 20 किलोमीटर. If you fail to understand only D factor, then automatically your lunch box will get delivered far from the 20 kilometer far from the destination. Can you imagine? अगर आपकी ज़रा सी भी भूल, आपका लंच बॉक्स डिलीवर नहीं हो पाएगा. Since 130 years ऐसे कभी हो नहीं हुआ है. Can you imagine? Since 130 years ऐसे नहीं हो चुका है, because ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जो डेडिकेशन लेवल लगता है ना, वो 100% दिया इसी के वजह से. अगर यही छोटी छोटी टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं हमारे कॉर्पोरेट्स में भी, जो हम अंडरस्टैंड करने में अगर भूल कर देते तो सिस्टम में चेंजेस हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. बट ये चेंजेस ना हो, इसीलिए 100% डेडिकेशन अगर आप दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सक्सेस रेट हाई होगा. नाउ इट्स आवर सप्लाई चेन. सो दिस वाज ओनली द कोड्स. ये डब्बा सिर्फ अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, लेकिन सप्लाई चेन किस तरह से काम करती है यू कैन सी हियर. सो वी आर फॉलोइंग हब एंड स्पोक मॉडल. आज अगर आप देखोगे एवरी लॉजिस्टिक कंपनी, एवरी कुरियर डिलीवरीज कंपनी, कोई भी सप्लाई चेन के रिलेटेड कोई भी कंपनी हो कॉर्पोरेट में, दे आर फॉलोइंग ओनली वन मॉड्यूल, दैट इज हब एंड स्पोक मॉडल. डायरेक्ट डिलीवरी आज फॉलो किया जाता है बट वो इमीडिएट डिलीवरी होगी तो, बट हब एंड स्पोक मॉडल ये पूरे ऑल वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है. इफ़ यू वांट टू सेंड योर पार्सल फ्रॉम हियर टू द मिशिगन, यहाँ पर आपको न्यूयॉर्क में अगर आपका पार्सल भेजना है, लुइसविल में, यूएस में एक लुइसविल सिटी है, अगर आपको पार्सल भेजना है सो ये पार्सल यहाँ से डायरेक्टली डिलीवर नहीं किया जाएगा, इसे पहले मुंबई के हब में लेके जाएंगे. सारे इंडिया के जितने पार्सल जो अमेरिका डिलीवर हो जाएंगे उनको सबसे पहले मुंबई में लाएंगे. सो मुंबई से लेके मुंबई का ये जितना भी डिलीवरी पार्सल्स है वो सारे के सारे भेजे जाएंगे यूएस में उनके हब पॉइंट पर, जहाँ पर न्यूयॉर्क में. तो न्यूयॉर्क में सारे पार्सल्स वहाँ पर आएंगे और वहाँ से उनको सेग्रीगेट किया जाएगा एज पर द स्टेट्स, और वहीं पर स्टेट में जाके डिलीवर किया जाएगा. मीन्स कलेक्शन फ्रॉम द मल्टीपल स्पोक्स, अलग अलग सिटीज से, अलग अलग स्टेट से जो भी पार्सल भेजने वो कलेक्ट करके एक हब पे आना, हब टू हब ट्रांजैक्शन, देन हब टू स्पोक ट्रांजैक्शन. सो इस तरह से हब एंड स्पोक मॉडल चलता है. यू कैन सी हियर, वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ शॉर्टिंग पॉइंट. मीन्स ये विले पार्ले स्टेशन है. So A, B, C, D, these are the dabbawalas. They are collecting the lunch boxes from the homes. They come together at Ville Parle station. So जैसे ही आप विले पार्ले स्टेशन पर आते हो, so as per the center code, as per 3, 2, 4 जो सेंटर में होगा, according to the codes, you should sort your lunch boxes on the platform. प्लेटफॉर्म पर ऐसे नंबर्स हो गए. Just take your lunch box and keep there. ये आपकी शॉर्टिंग्स होती है. Once you done your sorting, then supervisors will allot one numbers to you.
लाइक आपकी शॉर्टिंग हो गई, आज 3 नंबर्स के जितने भी डब्बाज मीन्स चर्च गेट में डिलीवर होने वाले जितने भी डब्बाज है, जस्ट टेक इट एंड गो फॉर द फाइनल डिलीवरी। ये डब्बाज लेके आप चर्च गेट चले जाओ। सेकंड बंदे को बोल देंगे आप 4 नंबर्स के डब्बाज लेके नरीमन पॉइंट चले जाओ। किसी और बंदे को बोल देंगे कि 13 नंबर्स के अंधेरी डिलीवर करने वाले लंच बॉक्स आप लेके जाओ। सो इस तरह से सेग्रीगेशन किया जाता है ऑन द प्लेटफॉर्म एंड फाइनली ऑल्सो डब्बा इज अलॉटेड फॉर द फाइनल डिलीवरी। सो वंस यू रीच एट द चर्च गेट स्टेशन, सी वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ओनली विले पार्ले स्टेशन। सो विले पार्ले स्टेशन से सारे लंच बॉक्स अगर चर्च गेट में आते हैं, सो वी हैव मोर देन 90 स्टेशन इन मुंबई, राइट। सो हर एक स्टेशन से डब्बाज आएंगे चर्च गेट स्टेशन पर। सो जैसे ही डब्बा वाला चर्च गेट स्टेशन पर आते हैं, यू नो we have more than 20,000 customer at Churchgate station. 20,000, more than 20,000. So we need at least 30 minutes for the shorting. So जितने भी डब्बा वालाज मल्टीपल स्टेशन से आते हैं at a Churchgate station, so उसे again segregate किया जाता है as per the डब्बा वाला code 1 2 3 4 5. So 9 will be the डब्बा वाला I told you, right? So as per the डब्बा वालाज code we short the lunch boxes. जैसी आपकी शॉर्टिंग डन हो जाती है तो वहाँ के जो सुपरवाइजर्स होंगे they will allot 1 numbers to you, take this all lunch box. और ये जितने भी लंच बॉक्स होंगे लाइक 9 नंबर्स के जितने भी लंच बॉक्स है, वो सारे लंच बॉक्स लेके ये 3 या 4 बिल्डिंग्स होगी, वहाँ पर जाके आपको डिलीवर करना, दैट्स इट। सो इस तरह यह सप्लाई चेन चलती है। दैट मीन्स फ्रॉम होम टू द शॉर्टिंग पॉइंट वी नीड 1 person, फ्रॉम शॉर्टिंग पॉइंट टू द डेस्टिनेशन पॉइंट वी नीड 2nd person, एंड फ्रॉम डेस्टिनेशन टू द लास्ट माइल डिलीवरी वी नीड 3rd person। मीन्स अगर एक डब्बा डिलीवर करना है तो मिनिमम डब्बा वाला दे नीड मिनिमम 3 people टू डिलीवर 1 डब्बा। So this is our first part of our supply chain. Total we have 12 parts in supply chain. ऐसे कुछ parts हैं जहाँ पर मिनिमम 7 लोगों की ज़रूरत लगती है, 7 लोगों की ज़रूरत लगती है एक डब्बा डिलीवर करने में। Now imagine no mobile phone, no written information. So how these people they are connected to each other? एक लंच बॉक्स 3 लोगों के हाथ के नीचे से चला जा रहा है, so उनका कोलैबोरेशन, उनकी कनेक्टिविटी ये कैसे हो जाती है? So it's totally depend on time policy. Time policy and trust factor. So time policy means was exactly, see, we have a 3-minute time policy here. If you are my customer, then we will told you in the morning by 9 exactly by 9 o'clock I'll be there to pick your lunch box. So as a customer you should hand over your lunch boxes to me before 9. If you are failed to hand over your lunch box to me, then I will wait up to 3 minutes. I will wait up to 3 minutes, up to 9:03 I will wait. Then if you fail, then I'll goes out without your pick. Because one dabba has to pick minimum 40 lunch boxes. So within 1 hour and 30 minutes. So hardly for one customer we can give 75 seconds. So it's not possible. Waiting time और ये सारी चीज़ें अगर कैलकुलेट करोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा विद इन 1 hour and 30 minutes में इतने डब्बे स्पीक करने। सो इसके लिए 3-minute टाइम पॉलिसी हमारे लिए काम करती है। एज अ कस्टमर यू शुड फॉलो द टाइम्स एंड रूल्स। लाइक योर कस्टमर इज अ गॉड, बट कस्टमर इज लाइक दैट नॉट अ दैट टाइप ऑफ गॉड, राइट। वो पूजनीय गॉड नहीं है, बट उनके लिए जो भी कुछ कर पाएंगे हम कर सकेंगे, बट उनको भी कुछ रूल फॉलो करने ही होते हैं। सेकेंड थिंग, सेम रूल फॉर डब्बा वालास। एज ए डब्बा वालास आवर टाइम इज बाय 10:30 ऑफ शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का टाइम अगर 10:30 है, सो यू शुड रीच एट द शॉर्टिंग पॉइंट बिफोर 10:30 एंड अप टू 5 minutes यू विल हैव टाइम। 5 minutes आपके लिए टाइम होगा। जस्ट शॉर्ट योर लंच बॉक्स एंड टेक द लंच बॉक्स एंड गोज आउट फॉर द फाइनल डिलीवरी। टेक योर लंच बॉक्स एंड गोज। यहाँ पर 5 मिनट का टाइम देता है हैंड ओवर के लिए, डब्बा वालास के लिए। सो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल हो जाता है हमारे कैब्स का। सो कैब्स वर्क्स लाइक ए GPS फॉर अस। यू नो व्हाई? बिकॉज वी आर डूइंग अ शॉर्टिंग्स ऑन द प्लेटफॉर्म्स। सो प्लेटफॉर्म पर एग्जैक्टली कहाँ पर शॉर्टिंग की जा रही है? सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट? देयर आर thousands of people on the platform. So how we can find out where is my dabba wala? In 100 meters we can find, suppose there is a white cap person, with the white cap person, so we can identify there is my dabba wala. So I can connect with him in the crowded in a crowded place within 10 seconds. So white cap is very very important. Now rules and regulations. See, dabba walas का ये सबसे बड़ा rule है. See, values are very important. Price is not important. Values are important. That cap, price of the cap is only 20 rupees. Price of the cap is only 20 rupees. But अगर आपने ये cap नहीं पहनी, then supervisors will charge you 1000 rupees as a fine. 1000 rupees आपसे फाइन चार्ज किया जाएगा, क्योंकि रूल्स अगर आप ब्रेक करते हो तो उसकी पनिशमेंट भी आपको भुगतनी पड़ेगी. इट्स अ वेरी वेरी बिग पनिशमेंट. So exactly you can see here. So we are collecting the lunch boxes from the homes. Then we all dabbolas meet at the Vileparle station. We short the lunch box and we get the train. जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेशन पर जाएंगे,
सो वो ट्रेन पहुंचने से पहले वहां के जितने भी डब्बावालास है वो अपनी शॉर्टिंग डन कर मतलब खत्म करके वो ट्रेन के लिए वेट करते हैं. जैसे हम नेक्स्ट निकलेंगे देन वो डब्बावालास पहले आएंगे और वही ट्रेन में बोर्ड करेंगे. बिकॉज हर एक डब्बावालास की एक स्पेशल ट्रेन होती है जो टाइम के हिसाब से चलती है और उसी में आपको बोर्ड करना होता है. बिकॉज आपको डब्बास भी दूसरे डब्बावालास को हैंड ओवर करने होते हैं. जैसे ही आप 3 डब्बावालास टुगेदर हो गए, एक साथ मिल गए, देन तीनों भी ट्रैवल करेंगे फॉर द नेक्स्ट स्टेशन. यहाँ पर कोई किसी का तो डेस्टिनेशन होगा तो वहाँ से एक बंदा उतर जाएंगे, वो अपने फाइनल डिलीवरीज के लिए निकल जाएंगे और लास्ट में ये दोनों बंदा सेग्रीगेशन करने के बाद फाइनल डिलीवरीज के लिए निकल जाएंगे. ऐसे हर एक स्टेशन पर हर एक पॉइंट पर अलग अलग डब्बावालास को मीट करके हैंड ओवर करना होता है. So as per the labor law policy, government law, we are working for 8 hours. We start by 9 o'clock and we end it by 6. Now here is a question for you all. The cost of the service. Can you imagine how much Dabbawalas they are charging from their customers? Like in the starting of this presentation I told you, if you want to send your parcel immediately within just 27 kilometers, then courier companies they will charge more than 400 rupees for your immediate delivery charges. And within 2 hours we are delivering your first parcel. They are carrying only 30-gram envelope and they are charging 400 rupees. But with Dabbawalas, we are carrying your 1 kg lunch box for 70 kilometers. Then how much Dabbawalas they are charging? Even Swiggy and Zomato, they are charging 40 to 45 rupees for first 5 kilometers. And after every मतलब 5 किलोमीटर के बाद हर एक किलोमीटर के लिए they are charging 10 rupees extra. Then for 5 kilometers, they are charging 50 to 40 rupees. For immediate delivery, 27 kilometer, 400 rupees they are charging. Then we are covering almost 70 kilometer, 1 kg lunch box we are carrying. Then how much Dabbawalas they are charging from their customer? 150 for a month or for a day? For a day, okay? From this side? Yes? 500 to 1500 per month, okay? From this side? No one? So AI technology आने के बाद just pick your mobile, just search how much Dabbawalas charging, you will get the answer. But try to decode it. कितना Dabbawalas charge करते हैं अगर ये इतनी accurate service Dabbawalas provide करेंगे तो? No one? Suppose you are a boss of Dabbawala. This is your company. Okay? This is your company, then how will you will get charged? How much you will get charged? आप कितना चार्ज करोगे पर कस्टमर से? आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देने वाले हो? नो? 120 फॉर मंथ और डे? फॉर अ डे? ओके. 200 rupees for? Okay, 1200, sorry. 1500 to 2000. Okay. Okay, we are starting an auction here. See, someone said 50 to 100 rupees for a one delivery for one day. Someone said minimum 500 to 1500 for a month. Let's see here how much we are charging. See, our customer base is not same. Children's they are taking our service and big CEO managers also they are taking our service. So CEO managers they can pay more than thousands, 2,000, 4,000, 10,000 even. But small children's, cab drivers, vegetable sellers they can't afford it, right? But there is no any differentiation between the God, poor God and rich God, right? God is one. Our customer is a God. That means we should charge one ideal price from all. And because of our pricing policy, we don't have any competitor in Mumbai. Since 130 years, आज तक Dabbawalas की तरह और कोई भी system start नहीं हो चुकी है because of the pricing policy. You know how much we are charging? We are charging only 6 to 7 rupees for one transaction, 15 rupees for two transactions, minimum 200 rupees per month, maximum 1500 rupees per month. It's depend on the distance and weight of the lunchbox. So basically this is our time journey. I told you 8:30 to 9 o'clock is our pray time. We're setting our target in between that. So 9 to 10:30 is our peak time. Then 10:30 to 11:30 is a journey time through the local trains. 11:30 to 12 o'clock we need 30 minutes for the shortings. And finally in between 12 to 1 o'clock we deliver all 200,000 lunch boxes at the offices. So Bayfar 1 that's our target. And finally after over the lunch we are again following the same routes up to 6 o'clock.
Let's see how it's work exactly. Sound is not connected. And yet it boasts a delivery network that is the most efficient of its kind anywhere in the world. For most Indians, there's nothing better than home-cooked food. So every morning at around 9 a.m., 4,000 men set out to collect over 175,000 packed lunches from homes and kitchens all across the suburbs. Sandwiches and mass-produced fast food are frowned upon. Instead, using these ingenious containers, known as tiffin boxes, an entire three-course meal can be prepared to your exact requirements and then shipped across town. But that is no easy task. Once the tiffin boxes are picked up, they are taken to the nearest railway station. Here, they are sorted. The service is run by a group of men known as tiffin wallahs. Most are illiterate, and so a complex set of markings has emerged that determines where each tiffin box has to end up. The tiffin wallahs are nearly all from the same caste. It's a tight-knit community, and the tiffin service is run with military precision. The whole tiffin network runs without any bosses, and yet every day, all 175,000 lunches are successfully delivered throughout the city in the space of just 2 hours. Once the trays of tiffins arrive in the downtown stations, they are then sorted again according to their destination. Some lunches will change hands up to 4 times. And yet somehow, only one error is made in every 8 So million in case of deliveries. emergency, they are doing this. This extraordinary network runs so reliably and efficiently that it has been studied by economists across the world. And all this so the workers of Mumbai can eat a 3-course home-cooked meal for lunch, and wherever they are in the city, a little piece of home is never far away. This is the last mile delivery. So for the team building and motivation pact, we are just following these things you can see here. Equal rights to all. हर डब्बावालों को equal rights है, they can take their decisions and their own decisions as per their limits. Every year we organize the spiritual events because डब्बावालाs are totally spiritual, they are pilgrims. So उनके लिए spiritual events ही अगर हम organize करते हैं, so automatically it will help to help for self motivation, you can say. And every year we allot 4 days. हर एक डब्बावालास को हमारी सर्विस जो होती है दिवाली के 4 दिन एंड चैत्र महीना जो हम कहते हैं हमारे हिंदूज़ में जो चैत्र महीना होता है उसके फर्स्ट 4 डेज हम उनको डब्बावालास को हॉलीडेज अलाउड करते हैं बिकॉज इन फर्स्ट दिस 4 डेज ज़्यादातर फेस्टिवल्स होते हैं इन विलेजेस में. सो पूरी हमारी सिस्टम बंद होती है 4 डेज़ के लिए. सो ये क्यों दी जाती है? बिकॉज जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, एन्जॉय योर लाइफ विथ योर फैमिलीज एंड रीमोटिवेट योर सेल्फ एंड ज्वाइन विद द न्यू थाट्स. दैट्स आवर थिंकिंग या. एंड डेमोक्रेटिक सिलेक्शन ऑफ लीडर्स, बिकॉज यहाँ पर कोई भी तरह के लीडर्स नहीं होते जो डब्बावालास को खुद प्रमोशंस देते हैं. यहाँ पर डब्बावालास ही उनके लीडर्स को प्रमोशंस देते हैं. एंड टीम कॉम्पिटिशन्स, इंटरनल कॉम्पिटिशन्स, बिकॉज इन वन ग्रुप वी हैव 10 people, so it's depend on your group performance how much you will get earned. So some dabbawalas they are earning minimum 15,000 and maximum 55,000. It's depend on their collection and distributions and their work and what their dedication level. So these are the major features of our supply chain. You can see no fuel, use of local train means public transport, no plastic, no paper, no technology, no investment. But still since 130 years we have 100% satisfied customer with us. And these are the unknown fact you will get enjoy. See our error rate, that is 1 in 6 million transactions. So we can say it's a better than Six Sigma, right? Because Six Sigma means 1 to 3 defects in 1 million transactions. But we are doing 1 mistake in 6 million transactions. So it's a better than Six Sigma. This is an external excellence level, 99.99997%. No strike record since 130 years. आज तक डब्बावालास कभी भी किसी भी टाइप के स्ट्राइक पर नहीं गए हैं. Because they think I am a responsible for my job.
right? I'm responsible for my customers. So I'm not, if I'm not delivering this lunch box, so ये मेरी responsibilities, मतलब जो commitment है, उससे follow करना है first. Second thing, no resignation since 128 years. आज तक किसी भी डब्बावाला ने खुद के जॉब का रेजिग्नेशन नहीं दिया है, because they are their own boss. So no leaders, no directors, so that means no targets, no tension, no frustration, because of that no resignation. No age limit for the work. Up to 85 years old you can work here in the system, and you can start by 18 years of old. Still 85 years old, some dabbawalas, they are working with us because they think I am a soldier of Chhatrapati Shivaji Maharaj and my God is waiting for me at their home. So मैं घर पर बैठ के क्या करूँ? So you know, bicycle is helping us for a physical maintenance. Dabbawalas, they are physically fit because all the dabbawalas, they are using the bicycles. And no resources, only with the help of bicycles we are beating the Six Sigma level. Can you imagine? Six Sigma level को beat करने का काम कर रहे हैं dabbawalas with the help of only bicycles. No infrastructure, no technology, no mobile phone, no any information or no papers, just only using of bicycles. So how we recruit the people? We are not taking any type of interview, no group discussion, no trainings. We are just giving 5 days training to them, and in these 5 days we select the right person for the right job. In first 2 days we are giving the knowledge about supply chain and coding system. Means ये supply chain है, ये coding system है, this is your locations, take the lunch box and goes for the final delivery. ये knowledge उनको 2 दिन में दिया जाता है. On third day, as a CRM expert, we told to our customer, आज आपके पास जो भी डब्बावाला आएंगे उनके साथ आपको झगड़ा करना है. Just argue with this man because we want to check how we handle the situation from bottom of heart, how we talk with the customer. That's very important because without any training, how we handle the situation, ये दिल से किस तरह से अपने कस्टमर से बातें करते हैं, that's very important thing. So ये ऐसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं. On fourth day, उनके साइकिल को पंक्चर किया जाता है. We flat the tire of the bicycles because we want to check how we collect 40 lunch boxes within time limit with the flat tire. तो ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है because these are the day to day challenges. And on fifth day, we are giving the workload. उनको वर्कलोड दिया जाता है कि आज आपको 60 लंच बॉक्स पिक करना है इंस्टेड ऑफ 40. सो वी चेक द रिएक्शंस, हाउ वी रिएक्ट ऑन दैट, बिकॉज यू थिंक कि सिंस द स्टार्टिंग ऑफ दिस माय वर्क आई एम फेसिंग सम चैलेंजेस. ये चैलेंजेस को फेस करना पड़ना है तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा. सो ये बिकॉज ऑफ दैट सम डब्बावालास वो निकल जाते हैं, वो सर्विस में नहीं आ पाते. बट आउट ऑफ 100 वी सिलेक्ट मोर देन 60 पीपल एवरी ईयर इन द सिस्टम. सो यू ऑल नो अबाउट the King Charles now, the King of London, wanted to meet a dabbawala. So one time what happened, Mr. Jain, he's from Delhi exactly. He just came down in Mumbai and he said to dabbawala, sir, Prince Charles wanted to meet you, just come in this office on the time. So our dabbawala said, who is the Prince Charles? We don't know. Because Prince और ये Charles, ये दो इंसान है या एक है, इतना भी dabbawala को नहीं पता था because of the less education. But Mr. Jain said, he's a great king of London. But our dabbawala said, so what? Our customer is a greater king. If your king want to meet us, then he should come in our given time, in our given place. So Mr. Prince Charles thought about it. The thousands of people that are waiting for my appointment. But I am giving appointment to dabbawalas, but they are not accepting. Why? Because of their God factor. Okay, finalize the meeting as per their time. You can see the meeting was finalized on the 4th November in 2004. So ये मीटिंग ओनली ऑर्गेनाइज फॉर 20 मिनट्स. डब्बावालास ने कहा था उनको अगर मिलना है सो 11:30 से लेके 11:50 के बीच में ही हम उनको मिल पाएंगे एट द चर्चगेट फुटपाथ ओनली, बिकॉज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. उनको मिलना है तो हम यहाँ पर ही हम मिल पाएंगे, बिकॉज अगर हम 12 o'clock के पहले अगर हम उनको मिलते हैं तो मिल पाएंगे, अदरवाइज आफ्टर 12 इज आर डिलीवरी टाइम. सो हमें डिलीवरी के लिए निकलना होगा. सो किंग अगर टाइम पर हो गए तो मिलना पॉसिबल है. सो किंग वॉज ऑन टाइम ऑन चर्चगेट फुटपाथ. यू कैन सी हियर, जैसे ही पता चला कि ही इज़ अ ग्रेट किंग ऑफ लंडन, सो एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड डब्बावाला ने उनको फेलिसिट कर दिया. वर्ल्ड अमेजिंग रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, क्वालिटी एश्योरेंस, आइकॉनिक अचीवर्स, देन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, सिक्स सिग्मा. टोटल वी हैव मोर देन 700 सर्टिफिकेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. Can you imagine, we never apply for any certificates. डब्बावाला ने कभी किसी सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई नहीं किया. अगर कोई भी कॉर्पोरेट उनके बारे में जब खुद की मार्केटिंग करती है तो दे आर शोइंग लाइक, सर वी हैव अ ISO मार्क, वी हैव अ क्वालिटी सर्टिफिकेट, यू कैन बाय आवर प्रोडक्ट.
but with Dabbawalas we never require any type of certificate to show our qualities because हर एक इंसान को पता है Dabbawala is a trust factor, is a devotion factor. If someone is the devotion, then automatically their trust level is automatically go high. There is one hotel in London. They invite some Dabbawalas to inaugurate this hotel. You can see here. There is one there are some Dabbawalas with the basket. You know why these people they invited the Dabbawalas? Because the concept of the hotel is very unique. If you order the food from this hotel, then food will comes to you by lunch box, not by the plate. So ये lunch box में आपके table पर lunch आ जाएगा. So because of that, invite some Dabbawalas. And these are the 50 people who influence the Mumbai in all over the world. You can see Dabbawalas on the top here. So Dabbawalas के वजह से आज मुंबई का नाम रोशन है और मुंबई के वजह से Dabbawalas का नाम रोशन है. तो इस तरह से रिलेशंस मुंबई और Dabbawalas का बन चुका है. In 2010, our Maharashtra government gave chance to all Dabbawalas to represent our Maharashtrian culture in front of Delhi on Rajpath. You can see 26 जनवरी पर जो हमारी परेड होती है, नेशनल परेड, वो टाइम Dabbawalas ने प्रेजेंटेशन किया था. There are multiple न्यूज़ चैनल्स, डॉक्यूमेंट्री चैनल्स आज सभी Dabbawalas के ऊपर केस स्टडीज करते हैं और Dabbawalas को फेलिसिटेट करते हैं. दिस इज द सेकंड रॉयल विजिट. सर रिचर्ड ब्रांसन, ही इज अ चेयरमैन ऑफ वर्जिन एयरवेज. सो उन्होंने कहा कि आई जस्ट वांटेड टू शेयर 2 days विद द Dabbawalas, कि मुझे उनके साथ काम करना है, उनके साथ चलना है. आई वांट टू डिलीवर आवर लंच बॉक्स टू माय एम्प्लॉयज़. सो उन्होंने कहा कि हमारे एम्प्लॉयज़ को मुझे लंच डिलीवर करना है खुद से. सो यू कैन सी ही इज हैविंग अ यूनिक लंच बॉक्स विद द वर्जिन एयर मार्क. सो उन्होंने ये लंच बॉक्स अपने एम्प्लॉयज़ के टेबल पर जाके रख दिया. कैन इमेजिन ये एक्सपीरियंस, लाइक इफ यू आर वर्किंग विद द रिलायंस कंपनी, देन ऑटोमेटिकली धीरूभाई अंबानी, Mukesh Ambani is coming to you and you are giving your lunch box to you. It's a good experience for you. Like, so इसी तरह से उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ये एक्सपीरियंस दिया. दिस इज द लास्ट थर्ड विजिट, रॉयल विजिट, क्वीन मैक्सिमा, क्वीन ऑफ हॉलैंड. शी वॉज ऑल्सो मेट अस इन 2018, just before 6 years back. So I was there, so I just took a selfie with her. Total we have more than 200,000 customers. So every FMCG companies, corporate companies, they wanted to tie with the Dabbawalas to advertise their products. So Pizza Hut, they complete their 9,000 stores in all over India. They just choose the Dabbawalas network to advertise their products. And here is my job exactly. I am designing the advertisement for the corporates. So मैंने Jaguar के लिए एक एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन की थी. लाइक Jaguar इज़ अ फास्ट कार, राइट, बट स्पेशली इन मुंबई Dabbawalas आर वेरी फास्टर. सो हम इसे कैसे एडवर्टाइजमेंट में कन्वर्ट करेंगे. सो हमने क्या किया कि 2 Dabbawalas को लिया. एक Dabbawalas Jaguar से ट्रैवल करेगा और एक Dabbawalas नॉर्मल रूट से ट्रैवल करेगा. और ये दोनों की जर्नी है वो हम उसे एडवर्टाइजमेंट में दिखा देंगे. और Jaguar में से Dabbawalas उतर के Dabbawalas फाइनली डिलीवर कर देता है फर्स्ट. सो ये से अगर हम शो करेंगे तो ऑटोमेटिकली Jaguar की मार्केटिंग हो जाएंगे. सो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट का डिज़ाइन हम करते हैं. पार्ले किस्मी चॉकलेट आपने पता होगा, पार्ले की किस्मी चॉकलेट, उसके लिए भी हम एवरी ईयर उसके एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं. लाइक ऑन 14 Feb, वैलेंटाइन डे. सो वैलेंटाइन डे के बिफोर 1 month वो फ्लेवर्स ऐड कर देते हैं किस्मी चॉकलेट्स में. तो वो फ्लेवर्स को हम नज़रअंदाज करते हुए कि उसमें किस तरह से हम इसे पहुंचाएंगे. सो 14 days के पहले 12 Feb को हम ये इसकी मार्केटिंग करते हैं. एंड वी आर सेंडिंग आउट मैसेज विद द टॉफीज कि 2 days 2 दिन के बाद वैलेंटाइन डे है, भूलना मत, कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेके घर जाना, ताकि आपका रिलेशन मेंटेन रहे. बिकॉज काम के चक्कर में हम अच्छे दिन भूल जाते हैं और वहाँ से कुछ तो मुश्किलें खड़ी हो सकती है. सो इट्स लाइक अ वन मैसेज. यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब, यू विल गेट दिस डिटेल्स. इवन विद द रेड बुल ऑल्सो वी आर डूइंग द सेम थिंग्स. रेड बुल के साथ हमने काम किया है. रेड बुल के लिए जैसे आपने देखा होगा कि रेड बुल का एक बंदा है जेसन पॉल, वो बुर्ज खलीफा से नीचे कूदते हैं, मतलब ड्रिंक करने के बाद. तो उसी तरह से उनकी जर्नी Dabbawalas के साथ हमने शो की थी कि वो जस्ट मुंबई में दौड़ लगा रहे थे और Dabbawalas का मतलब Dabbawalas अपने डब्बाज लेके जा रहे थे और उनका धक्का सिर्फ Dabbawalas को लग जाता है और डब्बा सारे गिर जाते हैं. सो ही हेल्प टू फीड द डब्बाज इन द बास्केट, बट गलती से एक डब्बा वहाँ पर रह जाता है, बट Dabbawalas निकल जाते हैं. तो ये जेसन बॉल मुंबई के जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स है, वहाँ से जर्नी करते करते हुए, दौड़ लगाते हुए वो फाइनली वो Dabbawalas को मीट करते हैं एट बॉलीवुड का जहाँ पर शूटिंग्स होता है
वहाँ पर उनकी मीट हो जाती है और वो साथ में डब्बा डिलीवर कर देते हैं। तो ये पूरी जर्नी उनकी डब्बावालास के साथ वहाँ पर दिखा के। सो इस तरह से अलग अलग एडवर्टाइजमेंट, लाइक गूगल प्ले के लिए हम अगर कोई भी न्यू एप्लीकेशन आ जाती है तो डब्बावालास के साथ उनकी फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट की जाती है। किसी को भी अगर सैम्पल साइज उनके प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो 200,000 कस्टमर्स वी हैव, सो ऑटोमेटिकली दे विल गेट द आंसर एग्जैक्टली हमारा प्रोडक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है और रॉन्ग है। तो इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट को डिजाइन करना, डब्बावालास का ये फंड हम चैरिटेबल के लिए यूज करना, दैट्स माई जॉब। एंड you know, Dabbawalas we are not only working for the customers, we are working for the societies also. There was a flood in Kerala, Maharashtra, so some Dabbawalas they gathered together, उन्होंने कुछ funds इकट्ठा किए, like more than 50 lakhs rupees we donated for the flood victims. We have a Roti Bank also. In Roti Bank, if you have a leftover food in your parties, in your marriage, so don't throw it, just call to Dabbawalas. We will be there, we will collect all the leftover foods and we will donate it for the poor people. So this is a big and popular concept of the Dabbawalas. Lunch with the 100 children once in a week. ये हमारा न्यू कंसेप्ट है, बिकॉज जहाँ पर भी आप प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो कुछ बच्चे वहाँ पर सोते हुए आपको दिखेंगे. सो हाउ वी कैन फीड देम विद द होम कुक मील. अगर हम उनको पैसे देते थे वो बाहर से खाना खाएंगे, बट होम कुक मील हम कैसे दे पाएंगे. सो यहाँ पर ही हमने एक आइडिया डिजाइन की कि हर एक डब्बावालाज वंस इन ए वीक दे विल कैरी एक्स्ट्रा लंच बॉक्स. आपको एक लंच बॉक्स एक्स्ट्रा कैरी करना है, जब भी आपका मन हो तभी आपको एक लंच बॉक्स कैरी करना है. उसकी आपको डिटेल्स हर टाइम ट्रस्ट को देनी होगी कि आपने कब और कैसे कैरी किया. सो एवरी डे मोर देन 500 to 600 डब्बावालाज दे आर कैरिंग देयर ओन लंच बॉक्स, एक्स्ट्रा लंच बॉक्स विद अस, एंड दे आर टेकिंग अ लंच विद टुगेदर विद देम. सो ये उन बच्चों को घर का खाना फीड करने का हमारा मकसद है. एंड फाइनली वी डिजाइन दिस एक्टिविटी शेयर माई डब्बा for our customer, because our customer said we have also extra lunch in our lunch box, so please do something for that, because ये डब्बा जैसे ही खाना भरा हुआ अगर हम घर पर भेज देंगे सो कल से डब्बा आना बंद हो जाएगा. सो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करो. सो यू कैन सी हियर दिस इज अ वन लिटिल बिट एक एडवर्टाइजमेंट हमने एक डिजाइन की थी. साउंड प्लीज. साउंड. आज अगर आज देखा जाए तो मोर देन 2,000 to 3,000 customers they are just donating their lunch for the poor people. So through these CSR policies, through these 3 CSR policies, we are feeding more than 10,000 people every day without spending single rupee. एक भी रुपया खर्चा न करते हुए मोर देन 10,000 लोगों को खाना देने का काम आज डब्बावालाज की सिस्टम करती है. सो आपको पता है जैसे ही कोविड आ चुका था 2 साल के लिए डब्बावालाज की सिस्टम बंद हो चुकी थी, बट थ्रू द CSR फंड वी कलेक्ट और मोर देन 100 crore rupees फ्रॉम द ग्लोब एंड वी यूज दिस फंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ डब्बावालाज. डब्बावालाज को महीने भर का राशन देना, डब्बावालाज को मोबाइल फोन्स गिफ्ट करना, डब्बावालाज को न्यू साइकिल्स देना, बिकॉज वी वांट टू ट्रांसफॉर्म एज अ 4th generation. It's our responsibility now to transform Mumbai Dabbawalas into digital Dabbawalas. So because of that, now for the adopting the technology, we are working on that project. So out of this, we are starting, हमने एक न्यू कंसेप्ट स्टार्ट की इन मुंबई में, centralized kitchen. So now Dabbawalas
we are providing lunch to the customers. You can order food from the dabbawalas. जब आपको चाहे मन आप order कर सकते हो. So this is the last slide. What we can take from dabbawalas. See the customer centricity approach. It's very important. Still we don't have any resource yet, but कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कैसे हम मैनेज कर पाए, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वर्क विद द पैशन. पैशन के साथ काम नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली योर डेडिकेशन लेवल गोज डाउन, परफॉर्मेंस लेवल कभी हाई नहीं हो पाएगा. कमिटमेंट टू द कस्टमर. इन फ्लड्स आल्सो डब्बावालास आर वर्किंग. जब तक घुटने तक फ्लड आ जाता है तब तक डब्बावालास काम करते हैं. जैसे ही फ्लड के वजह से लोकल ट्रेन थम जाती है तो डब्बावालास काम नहीं करते. ऑलरेडी वी टोल्ड टू आवर कस्टमर कि फ्लड में अगर ट्रेन बंद हो जाती है तो आपका डब्बा नहीं डिलीवर किया जाएगा. ऐसी सिचुएशन ईयर में हार्डली 1 या 1 या 2 ही बार आ जाती है. एंड फाइनली वर्क वेरी हार्ड. सो टाइम मैनेजमेंट, टाइमली चेंज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हॉनेस्टली, ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सब डब्बावालास ने सोचा कि मैं अच्छे से काम करूंगा तो कोई भी ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर पाएंगे. सो ये सारी चीज़ें हम एग्जैक्टली अगर फॉलो करते हैं किसी भी कॉर्पोरेट में या फिर किसी भी जगह पर, सो ऑटोमेटिकली हमारे परफॉर्मेंस लेवल में चेंज आ पाएगा और ये परफॉर्मेंस का चेंज हमें हमारे कंपनी को टॉप में लेने के जाने के लिए हेल्प करेगा. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. एंड जैसे ही मैंने कहा था कि टाइम इज अ मनी, यू कैन सी दिस लाइन, कर्मणे वादी के वास्ते मा फलेतु कदाचन. दैट्स मीन्स just focus on your work. What will comes from your work, don't think about it. Just focus on your job. So thank you so much. Now if you have any questions you can ask directly me. Thank you. हेलो. Actually sound वहाँ पर. Hello, Mr. Ritesh. Yes ma'am. I'm a faculty here. I basically work in the field of HRM, human resources. Okay. So I have been reading about Dabbawala since last many years. I also include your examples in my sessions. One thing I would like to ask is, since many companies are following the policy related to diversity today. So I want to ask, is there any scope for Dabbawali in your? So here is a scope in Dabbawala's kitchen exactly. Total we have more than 10,000 customers in Dabbawala's kitchen. So the food is made totally by women. So more than 200 to 300 women we have in our system, and some women they are also working with for the deliveries, because I told you small customers, small children also are customer. For the school kids, the women they are working for them, because उनका ज़्यादातर समय रोने में चला जाता है. तो हम खाना लेके जाएंगे तो वो खाना नहीं खाएंगे. So some women they helps to them to taking the foods. उनको निवाला भरने का काम भी करते हैं. तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना ये हमारी मकसद होता है. सो वुमेन्स भी हमारे साथ काम करते हैं, बट सेंट्रलाइज किचन के कसम के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स को हम अप्रोच कर रहे हैं. Thank you. थैंक यू. एनी क्वेश्चंस? जस्ट रेज योर हैंड. यस. थैंक यू सर फॉर द स्पीच. सर मेरा एक क्वेश्चन है, सिर्फ अगर आप कोई नया कस्टमर आता है, सो डब्बा उनका होता है ना, तो उसके ऊपर लेबलिंग कैसे करते हो आप? सी इफ यू वांट टू ज्वाइन विद द सिस्टम, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नाउ वी हैव एन वेबसाइट mumbai.in. आप वेबसाइट पे जाके आपकी पिक पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट ऐड करके आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो. अदरवाइज अगर कोई भी डब्बावाला आपको दिख जाता है तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके डब्बा सर्विस स्टार्ट कर सकते हो. सो नाउ लंच बॉक्स इज योर्स, बिकॉज कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि उनके लंच बॉक्स अलग अलग होते हैं. तो डब्बा आपका होता है, बट वो आपके डब्बे को किसी एक बैग में डाल के आपको देना होता है. हमें सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि एक जगह पर हमारा एटलीस्ट कोड हम ऐड कर सके, उतनी जगह हमें रिक्वायरमेंट होती है. जैसे आप डब्बा बैग में डाल देते हो, हम बैग के ऊपर मार्किंग करते हैं, और ये मार्किंग करने का काम हमारे सुपरवाइजर्स का होता है. और जो डब्बा वालास होते हैं वो बेसिकली म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करके उसको मार्किंग में रेडी कर देते हैं, और वो डब्बा वालास फ्लो में चला जाता है. तो यहाँ पर हम डब्बास प्रोवाइड नहीं करते, कस्टमर्स का ही लंच बॉक्स होता है. वी आर जस्ट मार्किंग आवर ओन सेट. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू.
Good afternoon, sir. Good afternoon. So, as a CSE student, last point that you spoke was you are trying to involve technology in this project. So, I want to ask you, in which way are you trying to put technology? Because the process that you made us understand, it was like a jigsaw puzzle. It fits perfectly. Yeah. So, what are you trying to involve more in this project? We are adapting the technology. We are also thinking about that, how we can adopt it, because we have a less educated people. So application use नहीं कर पाएंगे. ठीक है. So in operation part, we have only 35 seconds, 75 seconds. So how we can use technology to add each and every customer by scanning the codes and just add in the system. So ये भी possible ही है. But internal management like financial management हो गया या फिर डबोलस की connectivity हो गई या फिर कोई भी problem solving matters हो गए. So for that we can use system. Even as a customer they can pay online directly. They can subscribe on the applications. So ये सारी चीज़ें हम technology based करना चाह रहे हैं, because through this technology we can centralize the process, because still Dabol is a decentralized process. Whole जो groups है they are managing their own SEP. So as a member of the trust and association, they are paying 100 rupees for the trust and 100 rupees for the charity association. So this is a fees we are collecting from the Dabolas, but still Dabolas are not decentralized. So through the application, we want to be a centralize them. And a new concept, whatever we are starting, like Dabolas Kitchen, is totally based on application. So यहाँ पर you can just customize your product, customize your meal every day. You can just put your orders and automatically you will get your lunch. So ये टेक्नोलॉजी हम हमारी जो ओल्ड ऑपरेशन चैन है उसमें यूज़ नहीं करेंगे, बट अदर एक्सपेक्ट हम उसको यूज़ करना चाहेंगे. और डबोलॉस को मोबाइल गिफ्ट करने का कारण यही है कि एटलीस्ट दे कैन हैंडल द मोबाइल फ़ोन, कि उनको कैसे है एप्लीकेशन कैसे चलाने आते हैं, व्हाट्सएप कैसे यूज़ होता है. तो आज बहुत सारे डबोलॉस व्हाट्सएप का यूज़ करके उनके सिस्टम को थोड़ा स्मार्ट वर्क में लेके जा रहे हैं. तो इस तरह से हम एडॉप्ट करना चाह रहे हैं. And also there are many datas that each day that you collect also in your kitchen and also different orders. So do you have any data analysis or any such a position that is Yes, used for the perfectly centralized for that? kitchen we have a data analysis team also we have, and automatically softwares we have. So यहाँ पर हमें रिपोर्ट्स आ जाती है, बट सप्लाई चेन जो ओल्ड सप्लाई चेन है यहाँ पर कोई डेटा मेंटेन नहीं होता. ये मंथली डेटा रिकॉर्डिंग होता है. ये सुपरवाइजर्स के पास ही आपको डेटा मिलेगा बाई रिटर्न. उसे एक बुक में लिखा जाता है कि ये महीने में इतने कलेक्शंस हुए, और ये कलेक्शंस के बाद लाइक सपोज योर ग्रुप इज अर्निंग 2 लाख रुपीज़ फ्रॉम द कस्टमर्स. सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, 20,000 सैलरी फॉर यू. सो इस तरह से कैलकुलेशंस किए जाते हैं ऑन द बुक, एंड दे आर इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ओनली. ये कोई भी टाइप की ग्रेव मतलब एविडेंस नहीं है ताकि इस एविडेंस के बेस आप फाइट कर पाओगे. इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. चलो अपना इतना कलेक्शन हो चुका है, इतनी सैलरीज हमें आ सकती है. सो दिस लाइक दिस. सो उसी को भी हम कैसे कंप्यूटराइज कर पाएंगे, तो उसके लिए भी हम लोग टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं. Thank you, sir. या Hello, sir. हेलो. I have a question. The chain is of 5,000 dabbawalas. It's not possible कि every day all the dabbawalas came. So what's your backup plan for that? Yeah. See, I told you there are 10 people working in one group, right? So one will be the supervisors and one will the extra dabbawalas with them. So 8 people, they are actually working on ground level and for collecting the lunch boxes. But 2 people we have, supervisors and 1 dabbawala as a backup plan. If someone from the 8 people, they want us leave, उनको अगर कोई sick problem हो या फिर holidays चाहिए होता है, so in one group 2 people they can take a leave at a day. मतलब 8 लोगों के पीछे 2 लोगों का बैकअप हमारे लिए मेंटेन है. If you calculate it, so totally 4,000 people they are collecting the lunch box on ground level and 1,000 is purely backup for us. अगर 1,000 लोगों ने भी दिन में छुट्टी ले ली तभी भी सिस्टम चलती रहेगी. Thank you, sir. Any questions? Sir, even I have a few questions. एक तो that you said that the whole system is horizontally, like the president and even the 5,000 dabbawalas say lies on the same page. So are there any chances के कुछ conflicts हो? There are some ऐसा कुछ? Yeah, see dabbawalas का जो मैनेजमेंट है ये ग्रुप में सुपरवाइजर्स हैंडल्स करते हैं. अगर कोई भी प्रॉब्लम्स डब्बावालास में होती है, सो दे कैन यूज द सुपरवाइजर्स का इस्तेमाल करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं. अगर डब्बावालास को सुपरवाइजर्स ही प्रॉब्लम हो जाती है, सो दे कैन रजिस्टर देयर केस इन द ट्रस्टीज टू द ट्रस्टीज. तो ट्रस्टीज इसे सॉल्व करेंगे. अगर डब्बावालास का
और ट्रस्टीज का ही कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम को चेंज किया जाता है. बट ये होता कैसे? सो वी हैव अ कोड सिस्टम इन ऑफिस. सो यहाँ पर कोड सिस्टम में अगर आपको किसी के साथ प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करना होता है ट्रस्टीज को. सो ट्रस्टीज को इन्फॉर्म करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर डेट दी जाएगी. वो डेट में आपको और आपको जिसके साथ प्रॉब्लम है ये दोनों को वहाँ पर आना पड़ेगा. और यहाँ पर ट्रस्टीज जो फाइनली जो रिजल्ट देंगे उसको आपको फॉलो करना है. अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपको फॉलो ही करना होता है क्योंकि ट्रस्टीज का जो फाइनल डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन. मैंने जैसे ही कहा था कि डब्बा वाला को वो डायरेक्शन नहीं दे सकते. दे कैन गिव अ सजेशन. बट अगर कोई भी डब्बा वाला प्रॉब्लम हो जाता है तो ट्रस्टीज हैव अ राइट्स टू रिमूव दैम. तो ये ट्रस्टीज का राइट्स है. तो इसी के लिए ट्रस्टीज इंपॉर्टेंट है बट डे टू डे ऑपरेशंस के लिए सुपरवाइजर्स इंपॉर्टेंट है. तो इस तरह से उसे मैनेज किया जाता है ग्राउंड लेवल पे. आज तक डब्बा वाला का कोई भी पुलिस केस रजिस्टर नहीं है. Okay. थैंक यू. Also, sir, I have one more question. जैसे कि मान लो वन क्लाइंट के घर जाना है एक डब्बा वालों को, तो दैट पर्टिकुलर क्लाइंट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर अ फ्यू मिनट्स. वो घर पे नहीं है, कहीं आजू बाजू गया है, बट द डब्बा वाला हैज़ अराइव्ड. सो हाउ कैन दे कॉन्टैक्ट बिकॉज नो फॉर द बिगिनिंग इट मींस पिकिंग फॉर द पिकिंग एनी टाइम. सो वो टाइम पे कैसे होता है ना कि मॉर्निंग में मोस्टली डब्बा वाला अपने कस्टमर से मिलते ही नहीं है. सो उनके घर के बाहर वो डब्बास को रख देते हैं. डब्बा वाला दिल टेक एंड गोज आउट. वो मॉर्निंग में ऐसे होता है. बट आफ्टरनून में जब आप डब्बा डिलीवर करते हैं बिफोर 1 o'clock, सो यहाँ पर आपका लंच टाइम क्या है उसके ऊपर डिपेंड होता है. मतलब आइडियली लंच टाइम इज बिटवीन 1 to 2 o'clock. बट मोस्ट टाइम क्या होता है कि 2 बजे के बाद भी कोई लंच करते हैं या फिर किसी को टाइम नहीं होता. तो ये केस में डब्बा वाला उनके कस्टमर्स को 2 लंच बॉक्स अरेंज करने के लिए बोलते थे ताकि हम एक लंच बॉक्स रख देते हैं और येस्टरडे जो लंच बॉक्स आया था उसे पिक करके हम निकल जाते हैं. तो आपको लंच बॉक्स आप दिन में कभी भी खाओ. खाना होने के बाद आपके जो वहाँ पर केयर टेकर होते हैं उनको दे दो, वो ढो के वहाँ पर रख देते हैं. तो वहाँ पर एक प्लेस होता है, वहाँ पर ये डब्बास को रखना होता है. अदरवाइज डब्बा वाला जाके अगर उनको फाइंड आउट करते बैठेंगे तो टाइम निकल जाता है. सो ये सारी चीज़ें कस्टमर्स भी फॉलो करते हैं और डब्बा वाला फॉलो करते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट सप्लाई चेन इज वर्किंग प्रॉपरली. या सो आई थिंक क्वेश्चन था वो. Sir, I would like to ask you that with younger generation leaning toward more white collar jobs, how do you intend on continuing the profession? See, I told you we have 4 generation, so this is our responsibility to create a platform for the 4 generations. So हमारे जनरेशन में ऐसे कुछ बंदे हैं जे कोई CA है, कोई एडवोकेट है, लाइक आई एम MBA इन फाइनेंस. सो ऐसे कुछ बंदे हैं जो हायर एजुकेटेड है. तो उनके लिए डब्बा डिलीवर करना तो वो प्रेफर नहीं करेंगे. तो सिस्टम में हम काम कैसे कर पाएंगे और सप्लाई चेन बरकरार कैसे रहेगी. सो उसी के लिए हमने 2 साल पहले सिस्टम्स को ओपन कर दिया है. नाउ एवरीवन फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया दे कैन ज्वाइन टू द सिस्टम. बट यहाँ पर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को ठीक से फॉलो करना होता है. ये रूल्स और रेगुलेशन जो फॉलो करेंगे उसी को ही डब्बा वाला में ऐड किया जाएगा. सो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम बरकरार रहेगी इफ़ यू ओपन इट फॉर ऑल. और जैसे ये सिस्टम डे टू डे बाय ओल्ड होती चली जाएगी तो इसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे अपग्रेड किया जाएगा ताकि उसे हम अच्छे लेवल पर कर पाएंगे. आज अगर स्विगी और जोमेटो में अगर आप देखोगे सो कोई भी अगर वहाँ पर देखोगे उनकी एजुकेशन मोस्टली ग्रेजुएट के आसपास ही होगी, ग्रेजुएशन के आसपास ही होगी, या फिर कोई 12th क्लास और 12th क्लास से ज़्यादा होगी. बिकॉज उसके नीचे वाला बंदा ठीक से मोबाइल हैंडल नहीं कर पाएंगे फॉर द सॉफ्टवेयर बेस. सो डब्बा वाला का आज 0 क्वालिफिकेशन होने के बाद ये अच्छी सिस्टम चल रही है. सो उसे और अपग्रेड करके हम अच्छे करके उसको कैसे सिस्टम को हम बरकरार है उसके ऊपर हमारी 4 जनरेशन वर्किंग करें. नॉट ओनली फॉर द दिस बट जैसे सेंट्रलाइज किचन इज न्यू कंसेप्ट, देन इंस्टेंट डिलीवरी हम अभी एक कंसेप्ट ला रहे हैं मुंबई में नेक्स्ट ईयर. उसे हम कैसे स्टार्ट कर पाए, सेंट्रलाइज किचन को हम अलग अलग सिटीज़ में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, दिस आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ये अगर हम प्रॉपरली कर पाते हैं तो ये जो हायर एजुकेटेड जो बंदे हैं दे कैन कम इनटू द सिस्टम एंड दे कैन यूज़ द प्लेटफॉर्म एंड वो कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे. तो ये हमारी ट्राई है कि डब्बा वालों को एक पैरेलल लेवल पर एक कॉर्पोरेट में भी चलाना और डब्बा वालों को एज ए ओल्ड सिस्टम उसे बरकरार भी रखना. तो ये दोनों प्लेटफॉर्म को हमें ठीक से मैनेज करना. इसलिए हमारी तकरीबन 50 लोगों की टीम है जो डेली काम करती है, रिसर्च करती है, एनालाइज करती है और उसे कैसे सॉल्व करना ये सारी चीज़ें हम करते हैं. Thank you, sir. या मोस्ट वेलकम. एनी क्वेश्चंस नाउ? नो? हेलो. हेलो. मेरा सवाल ये है कि आपकी सर्विस कहीं दूसरे सिटी में चालू करने का सोच रहे हो बिजनेस एक्सपांड के लिए? यही तो सेंट्रलाइज किचन को ही हम एक्चुअली दूसरे सिटीज़ में स्टार्ट कर पाएंगे बिकॉज
सेम डी डिलीवरी मतलब जो सेम जो मुंबई में जो कंसेप्ट है वो अदर सिटीज़ में स्टार्ट करना ये हमें प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अदर सिटीज़ की कंसेप्ट अलग है, मुंबई की कंसेप्ट अलग है, बिकॉज मुंबई इज अ वर्टिकल सिटी. सो बिकॉज ऑफ द क्राउडेड लोकल ट्रेन इट्स नॉट पॉसिबल टू कैरी आवर लंच बॉक्स. सो बिकॉज ऑफ दैट डब्बावाला इज वर्किंग इन मुंबई. बट अगर आप अलग अलग सिटीज़ का स्ट्रक्चर देखोगे लाइक दिल्ली बैंगलोर, इट्स अ राउंडेड सिटी. सो लोगों की रेसिडेंशियल और लोगों की वर्क पोजिशंस, वर्क एरिया ये नियर बाय 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हार्डली होते हैं. तो वहाँ पर डब्बा वाला की ज़रूरत नहीं है कि डब्बा कैरी करने के लिए, बट वहाँ पर रिक्वायरमेंट है डब्बा वाला किचन की. लाइक बहुत सारे जो यंगर्स है जो जैसे लाइक IT सेक्टर में जो जॉब करते हैं लोग, तो वो मोस्टली सिंगली दे आर कमिंग इन द सिटीज़, नॉट विद द फैमिलीज. सो उनको खाना घर का नहीं मिल पाता, तो उनको घर की खाने की टेस्ट हम डब्बा वाला किचन से अगर दे पाते हैं तो ऑटोमेटिकली वी कैन वर्क इन अदर सिटीज़. सो हर एक 5 किलोमीटर के बेस हम कैसे किचन स्टार्ट कर रहे हैं, विद इन 30 मिनट्स उनको डिलीवरी कैसे प्रोवाइड कर पाएँ, तो ये सिस्टम हम अलग अलग सिटीज़ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. लाइक इन बैंगलोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ऑपरेशन इन बैंगलोर इन लेट नवंबर 2025. सो ये हमारा मकसद है कि एक ही साल में हमें बैंगलोर को टच करना है. नाउ वी आर इन पुणे, वी आर वर्किंग ऑन पुणे ऑल्सो. सो पुणे में हमारा ट्रायल रन चल रहा है और मुंबई में ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड द सेंट्रलाइज किचन. तो इस तरह से अलग अलग सिटीज़ में हम इसे लेके जाएंगे और इसे वर्ल्ड क्लास लेवल बनाने के लिए सोचेंगे. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच. Good afternoon. On behalf of GSFC University, I would like to extend a heartfelt thanks to Mr. Ritesh Andre for joining us today. Your presence has truly enriched our event with your unique insights and experiences. We deeply appreciate your dedication and remarkable work you do in ensuring food delivery with such precision and efficiency. On behalf of everybody present here, I would like to express our sincere gratitude for taking the time to join us and share your valuable insights. We deeply appreciate the time and efforts you've invested in making this session both informative and engaging. Your journey and the role of Dabbawalas in Mumbai have been inspiring to everyone present here today. Thank you, sir, for sharing your knowledge and experience with us. Let us all show our appreciation with a big round of applause for Mr. Andre. As a token of appreciation, we would like to present you a memento to honor your contributions and achievements. Now, I would like to request Ms. Nishu Chaudhary to present memento to Mr. Andre.